Hello and welcome to yet another episode of Coach I Need Help. This is episode number 19 or episode number 18, part 2. Depends on how you look at it. We are going to look at it as episode number 19. So let me give you some perspective. If you're watching this episode absolutely new and you're discovering Coach I Need Help for the first time. Hi, this is Coach I Need Help. This is a podcast which I, Manish Ahuja, create with my co-host Pankaj Agarwal, who's going to smile in 3, 2, 1. Yeah, that's him. ये क्या सिस्टम है? ऐसा ही है। अभी आप ऐसा बोल रहा हूँ, को होस्ट है और को पॉडकास्ट ओनर है, तुम हंसते नहीं हो तो क्या करना पड़ता है? 3, 2, 1 करना पड़ता है फिर तुम्हारे साथ। Okay, ठीक है. so we are friends. You can clearly see the banter that is happening. So we shoot one episode every week, talking about various subjects about life in the business of coaching, marketing agencies, digital content creators, everything. So it's a big gamut. You're over here. You know what you do. The idea is we started recording episode number 18 where we spoke about why coaches fail. And since both of us have over a decade of experience in the coaching industry, we have a lot to share. We shortlisted 16 points. We spoke about the first 8 points in episode 18 or part 1 of this series. And this is episode number 19 where we are going to talk about the next 8 points. I would very, very, very strongly urge you to watch the first episode, the 18th episode first. But just in case if you want to save on time or if you just want to recap, let me run you through all the first 8 points. We believe coaches fail because they are focusing too much on learning and on very little on execution. They are bad at selling and they are underconfident at selling. They're not focusing enough on their social media content or the branding. They lack clarity on niche, target market, and end result of the customer, which causes them to not come across as confident enough, and they don't come across as concerned enough to the market, and because of which they fail. They don't have enough experience and in their journey of the expertise that they're bringing to the table. They don't have enough domain knowledge. They don't have enough experience in coaching, and yet they don't want to build up on the skill set. The sixth point is they don't understand the difference between being a coach and running a coaching business. We've spoken extensively about this and all the other points that I've mentioned until now. We also spoke about lack of action and lack of consistency. These are the 8 points that we've already covered. Believe me, even if you think listening to this recap that you understand these points, you really don't, because we've shared a lot in depth. So if you've not seen the episode 18th, please watch the episode. Do not forget to subscribe to this channel because we keep creating new content all the time. And with that, hello Pankaj, how are you doing today? Which is exactly what you were doing about 3 hours ago. But since this episode is releasing 1 week later, tell us, how are you doing today? I'm doing good. I just had my lunch, जो आधा घंटे का ब्रेक लिए थे हम लोग. हाँ. उसमें I just enjoyed some आम पन्ना बनाई थी. तो I enjoyed the आम पन्ना and ठेकुआ बनवाए थे. आज मुझे सुबह ठेकुआ खाने का मन था, तो I just had 2 pieces of that as well. I have no idea what Thekua is. Please explain it to me if you can. हाँ, ठेकुआ बेसिकली ये बिहार में छठ पूजा करके एक फेस्टिवल होता है. वहाँ का बहुत बड़ा Correct. फेस्टिवल है. हाँ. तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे उस ओकेशन पे वहाँ पे सब लोग नदी पे जाते हैं, पानी सींचते हैं, तो कुछ उनका रिचुअल होता है सब. Correct. तो उसमें एक प्रसाद के तौर पे एक ठेकुआ बनता है. ठेकुआ मतलब जैसे कि मठरी बोलते हैं कोई, या सुहाली हाँ. बोलते हैं. हाँ. हाँ. मैदे हाँ. का चीज रहता है गोल गोल, उसको फ्राई करते हैं हम लोग और निकालते हैं. तो उसी का मीठा वर्जन हो गया ठेकुआ. Oh, nice. तो मतलब मीठी मठरी. काइंड ऑफ हाँ. मीठी मठरी से भी बहुत अच्छा चीज है. शक्करपारे जैसा. पता नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा और खाइएगा, बहुत अच्छा चीज है, जरूर खाना. जरूर. क्योंकि यहाँ पे भी कोई ये लोग नहीं जानते थे. मेरे वो आए हुए थे, मदर इन लॉ एंड वो लोग, तो उनको हाँ. भी नहीं पता था. तो हम बोले कि, वो पूछ रहे थे क्या खाएंगे, तो हम बोले ठेकुआ बनाइए. फिर बोले कि वो क्या होता है, तो हम वीडियो दिखाए उनको ऐसा हाँ. ऐसा. फिर वो लोग खाए, फिर उन लोग को भी अच्छा लगा. फिर अभी मेरी साली जी आई हुई थी, वो भी आई, तो वो भी अभी खाई. वो सुबह से नहीं थी, अभी आई अभी कॉलेज से, तो फिर अभी खाई. वो बोली कि अभी जो एक डब्बा बना के दी थी मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए, वो बोली कि अब वो ले जाएगी. अब अरे उनको कल अरे. फिर बनाना पड़ेगा. तो ठीक है, जब बन जाएगा तो कोई बात नहीं है. हाँ, ठीक है नहीं तो तो. हम तो लाके रख लिए थे अलमारी में, हम थोड़ी देने वाले थे. हाँ, अच्छी बात है. तो ये है तो टोटल एक्चुअल चीज. अच्छा, तो ये ग्रैंड हुआ सक्सेस. पिछले आधे घंटे में. ये मैं अभी जो आधा घंटा हम लोग ब्रेक लिए थे, हाँ. तो ये था. मतलब ऐसे तो हम लोग इसको बाद में भी कर सकते थे, बट हम चाहते थे कि अभी सेम एनर्जी के साथ, सेम मतलब पूरा एग्जैक्टली. फ्लो के टाइप, मूवी के टाइप से चले. करेक्ट. इसलिए जो लोग, अगर ऑडियंस अगर नहीं देखे हो अभी तक पुराना एपिसोड, तो आई वुड सजेस्ट, मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप देख लो. क्योंकि अभी मनीष जी उसको बस 5 मिनट हुआ होगा मुश्किल से अभी ये एपिसोड को, और हम करेक्ट. लोग बस थोड़ा सा हिंट दिए थे. बट वो एपिसोड 1.5-2 घंटे का एपिसोड है प्रॉपर. तब सोच लो, ये 8 पॉइंट को हम लोग खाली लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बोल के
एक्सप्लेन किए थे या फिर पूरा एग्जाम्पल देके पूरा रियल लाइफ के स्टडी बताए थे हम? कस्टमर्स का भी बताए थे अपना, और अपना खुद का भी बताए थे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट चालू करें ना मनीष जी, आपको कुछ और तो नहीं क्या पूछना है ना इंट्रोडक्शन में? नहीं, सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि the reason why we stopped shooting at part 1 is हम्म। because the next point that we are going to talk about, as we said, the ninth point or the first point of today's episode, is हम्म। one particular factor which has been affecting lives of 99.9% human beings today. So, which also takes care of 99.9% coaches today. The reason why coaches are failing, and Pankaj was kind enough to confess that this has been one of his problems. So, I'm sure he's going to elaborate a little about it. यस। It is the shiny object syndrome. So now, what exactly is the shiny object syndrome? How has it affected Pankaj, and how does it affect every coach, and why it affects coaches to a point that it leads to their failure is something that I would like Pankaj to start talking about because it's close to him, and then we'll look if यस। needed, I'll chip in. So please, Pankaj, let यस। us. यस। तो इन द लास्ट एपिसोड आई वाज टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, की कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होता है। तो आई आई वाज आल्सो शेयरिंग कि मैं इस समय कंसिस्टेंट नहीं था, ऐसे नहीं था, मेरे साथ भी है। तो मनीष एंड आई बोथ वेर शेयरिंग कि अपना अपना प्रॉब्लम्स, कि हम लोग भी कंसिस्टेंट नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, खाली हम लोग नेगेटिव साइड नहीं बताएंगे, जब बता रहे तो पॉजिटिव साइड भी बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट थे। तो वो अपना अपना कंसिस्टेंसी का एग्जांपल दे रहे थे, और मेरे केस में मैंने भी बोला कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कंसिस्टेंसी का एग्जांपल दे देता हूँ। तो फिर मैंने एग्जांपल ये दिया था कि ओवरऑल स्टोरी मैंने ये बताया था उसमें कि कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ एक्शन, ये सब जितना भी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस किए सब हम लोग के बीच में भी होते रहता है। तो मेरे केस में क्या है कि 1.5-2 महीना पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना वेबिनार को वापस से लॉन्च करें, जो 3 साल पहले हम चलाते थे। हाँ जी, तो 3 साल से ज्यादा हो गया, इनफैक्ट नवंबर 2019, क्योंकि 3 साल बोल बोल के आदत हो गया, बट एक्चुअली वो 5 साल से ऊपर हो गया है। तो इसलिए आप correct. कभी कभी देखते होंगे हम कभी 3 साल बोलते कभी 5 साल बोलते, बट वो एक्चुअली 5 साल से ऊपर मेरा हाँ एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ जी, तो अ, तो हुआ क्या था कि 3 साल 4 साल पहले वो हम चलाते थे कोचिंग बिजनेस, इनफैक्ट 5 साल पहले टू बी ऑनेस्ट, नवंबर 2019। फिर उस समय चलाते थे, फिर वहां से जॉब कर रहे थे, पैरेलली हम चला रहे थे। तो ट्रांजिशन करना था मुझे, जॉब से फुल टाइम कोचिंग में करना था। तो कि जो भी मैंने जॉब में सीखा था, टोटल डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, उसको सिखाना था लोगों को। तो ये करते करते मेरी बेस्ट कंसिस्टेंसी उस समय थी कि लगातार 6 महीना तक हम लगातार कर रहे थे, हर दिन वर्कशॉप कर रहे थे, क्योंकि मेरा 7 डेज का लाइव प्रोग्राम चलता था, लाइव प्रोग्राम ऑफ 7 डेज, वेयर आई वाज टीचिंग पीपल हाउ टू रन लीड एड्स, फेसबुक में लीड एड कैसे चलाते हैं। 7 दिन तक का प्रोग्राम था, और उसको हम लगातार 180 डेज तक चलाए थे, लगभग 6 महीना तक, हर वीक, वीक आफ्टर वीक, वीक आफ्टर वीक, नॉट अ सिंगल डे ब्रेक। और ऑफिस भी है और शाम को ये भी है, तो लगातार चला रहे थे। तो वहां पे हम अपने फेलियर का जो शुरू में डिस्कस कर रहे थे, से पहले वाले पॉइंट में तो डिस्कस वो हो रहा था कि कंसिस्टेंसी मेरा खाली 2 महीना से खराब नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी मेरे को 5 साल से नहीं हो रहा है, इसमें टेक्निकली देखा जाए तो। क्योंकि 5 साल पहले हम कर रहे थे कोचिंग, फिर बीच में आई स्टार्टेड डूइंग माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहाँ पे भी मैं कोचेस को हेल्प कर रहा था, एंड देन अगेन आई एम गोइंग बैक टू कोचिंग, मतलब दोनों चीज अब कर रहे हैं। correct. तो आई वाज शेयरिंग दिस स्टोरी बिकॉज कि कंसिस्टेंट रहते तो क्या होता कि अभी जो ऑलरेडी 5 साल का गैप आ गया, इस टाइम तक हम लगातार ये चीज करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं। सेम Correct. स्टोरी मेरा पहले भी है, कॉलेज के टाइम पे भी। कॉलेज के टाइम पे हम cashg.com करके एक वेबसाइट बनाए थे, वो काइंड ऑफ कैशबैक वेबसाइट था, बहुत सारा। उस समय बहुत कम वेबसाइट थे, आई थिंक 2014-15 में बनाए थे। Hmm. तो वेब होस्टिंग वेबसाइट बनाए थे, cashg.com बनाए थे, इस तरह से 5-6 वेबसाइट और बनाए थे, उस सब में भी कंसिस्टेंट नहीं थे। कंसिस्टेंट रहते 10-12 साल तक, अभी तक तो वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 वेबसाइट है, सब बन जाता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब सवाल ये आ रहा था कि जब हम बताएं यहाँ पे स्टोरी कि 6 महीने तक हम कंसिस्टेंट थे लगातार हर दिन, नॉट इवन सिंगल डे ब्रेक, तो कितना बैच हो गया, मतलब 4x6, 24-25 बैच लगातार चला था हर Mm-hmm. दिन। वेबिनार नहीं, ये हम वापस से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 7 डेज का वर्कशॉप था, 2 आवर्स इंटेंसिव वर्कशॉप, लाइव, कंप्लीटली नथिंग रिकॉर्डेड। Correct. तो वो मस्त चल रहा था, बट मैं क्यों छोड़ दिया उसको? तो उसका रीजन वही था कि आज का जो पहला पॉइंट है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे लगा कि अरे 7 दिन लगातार कर रहे, लाइव कर रहे, उसके वजह से हम ब्रेक नहीं ले पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, क्यों ना चलो कुछ और मॉडल ट्राई किया जाए।
अब मॉडल मुझे याद नहीं कि क्या ट्राई कर रहे थे, बट हाँ कि लगता था नहीं हाई टिकट ट्राई किया करा जाए कि एक बार बेचो फिर महीना में एक ही सेल 2 सेल हो जाए तो काफी है। या फिर वेबिनार मॉडल का ऑप्शन था कि 7 दिन रुकना ही क्यों है, एक ही दिन में क्यों ना करके खत्म करे। तो हुआ क्या कि ये 3-4 ऑप्शन आया मेरे पास, क्योंकि कर रहे थे मस्ती से, लेकिन फिर लगता है कभी चाहे लोग बोल रहे चाहे हम कर रहे थे या फिर लोग बोल रहे होंगे कि बार बार आपको टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के लिए, ये है वो है। तो कुछ भी रीजन था, बट मुझे लग रहा था कि बाकी मेथड ज्यादा अच्छा है इससे, तो क्यों ना वो किया जाए। और मार्केटिंग भी वैसा होता था कि वेबिनार में उस समय मेरे लिए वेबिनार नया था, क्योंकि मैं 7 डेज का वर्कशॉप को चूज करता था, 7 डेज या 5 डेज जो भी है। और लोग पेड वर्कशॉप कर रहे थे उस समय, ₹499 में 5 डेज वर्कशॉप, हम्म, ₹99 में 5 डेज वर्कशॉप। तो करेक्ट। क्योंकि मेरी फेसबुक एड्स में ऑलरेडी एक्सपर्टीज थी उस समय भी, मैं हम्म, ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा था पहले से, डिजिटल मार्केटिंग हेड के तौर पे। तो फिर मैंने क्या किया था उस समय, बोला कि फेसबुक की तरह सोचना होता है, एक स्टेप आगे सोचना है। मतलब जो लोग कर रहे हैं, पूरा दुनिया ये ऐड चला रहा है ₹499 का, ₹99 का, तो हम एक स्टेप आगे कैसे ले जाए उसको। पूरा करेक्ट। दुनिया उस समय वेबिनार का ऐड चला रहा था, फ्री वेबिनार का भी। हम्म, तो फ्री वेबिनार का सक्सेसफुल इसलिए होता था क्योंकि वो फ्री था, हम्म, पेड वर्कशॉप सक्सेसफुल इसलिए होता था क्योंकि वो पेड था और वो लंबा टाइम तक चलता था, लेकिन उसमें लोग कम आते थे। तो हम बोले कि क्यों ना हम्म, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, लंबा करो बट फ्री में कर दो। हम्म, तो बहुत अच्छा लगा। लीड कॉस्ट मेरा आई थिंक 5-6 रुपए करके आता था उस समय, और एकदम मस्त चलता था, बैचेस पूरा प्रॉफिटेबल रहते थे। एंड उसी समय से मेरा बहुत सारा अच्छा अच्छा सक्सेस स्टोरीज भी बना था। बट अब कमिंग बैक टू द पॉइंट टुडेस टॉपिक पे, कि यही सब चक्कर में फिर मैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम आ गया वहां पे, कि ये करो वो करो। और करने के चक्कर में मतलब कर लेते इम्प्लीमेंट, चलो 90 डेज वेबिनार भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, 90 मिनट्स वेबिनार कर लेते, दिक्कत नहीं था। सोचते रह गए, फिर सोचते सोचते फिर एजेंसी ही चालू हो गया, मतलब कोचिंग बंद करके एजेंसी चालू कर दिया। फिर एजेंसी करेक्ट। अभी चला रहे, एजेंसी को अब वापस हम सोच रहे कि कोचिंग में ट्रांजिशन करें। तो फॉर मी दैट वाज अ फेलियर, जो विच आई एम टेलिंग कि अगर if I had continued for continuously 5 years, week after week, even if I had transitioned to webinar, or maybe I would have continued that same 7 days model, maybe once a month, but regularly, या फिर twice a month, every alternate week, या फिर maybe I could have tweaked that to 5 days a week. हम्म, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते थे, we should always optimize. But my mistake was I just thought कि let's close it down, I'll find out the better method, then I'll work on it. But now I have learned one thing, that don't close it down. Do whatever you are doing, keep on doing it. Find करेक्ट। a better method parallelly. Then once it proves itself, then इसको बंद करके वो कर दो, which is what I was exactly doing. When I was doing a job, parallelly I started my coaching, and parallelly I started, or I found it successful. कि within 6 months I was able to scale a good amount to good amount and all. तो फिर that's why I left the job. करेक्ट। तो हर जगह आई फील पर्सनली, मेरी थॉट प्रोसेस है कि ट्राई करो, बिकॉज आई एम ऑल्सो मार्केटर, तो आई बिलीव इन ए बी टेस्टिंग एंड ऑल, कि पैरेलली ट्राई करते रहो, और फिर उसको छोड़ो जो पूरा, लाइक क्लोज डाउन द थिंग विच इज नॉट वर्किंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग विच इज वर्किंग. करेक्ट। So that was a big failure for me, because if I had continued, I would have been at a 100x higher level. तो ये टोटल स्टोरी था मेरे मेरे वो फेलियर का, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, उसका आफ्टर दोनों इफेक्ट. का, हाँ, एग्जैक्टली। तो just to explain to our audience, just in case if they don't understand what does the shiny object syndrome mean, आप उसको यस. एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या shiny object अब syndrome? मतलब उसको आप भी एक्सप्लेन कर देना, बट मेरे केस में मुझे लगता है कि बस शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम इज जस्ट लाइक, जो मैंने स्टोरी बताई थी कि लिविंग वन थिंग बिहाइंड टू, बिकॉज वो दूसरा चीज बहुत अच्छा लग रहा है, जो एक करेक्ट। बोलते हैं ना कहावत कि दूर का चीज गोल्ड लगता है, कुछ उस टाइप का कुछ था ना. हाँ, एवरी everything that shines is glitters is not gold. नहीं, वो तो नॉट गुड, बट ठीक है, हाँ इसी टाइप का है. आई हाँ, वाज रेफरिंग टू समथिंग एल्स मे बी. बट हाँ कि मतलब दूर का ढोल सुहाना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और दिस इज द दूर के करेक्ट. ढोल बजते हैं कुछ, तो वो हिंदी में मुझे नहीं पता। यस हाँ, यस, हाँ कुछ ऐसा था कि दूर का ढोल सुहाना लगता है. हाँ, 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 तो हाँ. वैसा। तो कुछ ये यहाँ पर एग्जांपल, ये प्रोवर्ब भी समझ जाओगे तो फिर मतलब आप समझ गए हो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है, कि आपको करेक्ट, लगेगा कि नहीं जो आप कर रहे हो वो तो ठीक है चल रहा है, बट वो कर लोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, ये करने से सक्सेस नहीं मिलेगा. अगर आप करेक्ट। वेबिनार कर रहे हो, उसमें लेवल वाइज मान लेते 5,000 का प्रोग्राम बेच रहे हो, तो आपको हम्म, लगेगा नहीं 5,000 के प्रोग्राम बेचने की वजह से आप बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर पा रहे हो.
वो कोच ठीक बताता है, वो तो बोलता है हाई टिकट सेलिंग करो, हाई टिकट सेल कर लोगे तब आपके लाइफ में मैजिक आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अगर आप हाई टिकट कर रहे हो तो फिर आपको लगेगा नहीं 5 डेज वर्कशॉप ज्यादा अच्छा था, 5 डेज वर्कशॉप नहीं, 1-to-1 कॉल फनल ज्यादा अच्छा था। अरे ये सब करना ही क्यों है? पर्सनल ब्रांडिंग फनल चलाओ ना, लोगों को ईमेल कोर्स बेचो, या फिर वो करो ये करो, मतलब इसमें लोग अटक जाते हैं, उसको लगता है कि वो कर रहे हैं वो गलत है, बाकी सब चीज सही है। क्योंकि करेक्ट। मार्केटिंग ही ऐसा किया जाता है आज के डेट में कि मतलब सब नहीं करते, बट कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है और उनका प्रोडक्ट को बेस्ट दिखाने के लिए लोग दूसरे प्रोडक्ट को डाउनग्रेड करते हैं। अगर किसी को दिखाना हाई टिकट कोचिंग अच्छा है तो बोलेंगे कि हाई टिकट कोचिंग ही अच्छा है, बाकी सब बकवास है। लेकिन हम लोग को पता है कि नहीं, हाई टिकट कोचेस भी अच्छा कर रहे हैं, लो टिकट कोचेस भी अच्छा कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग वाले भी अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, तो चलता सब है। तो वो जो बेसिकली मुझे क्या समझ में आ रहा है ना, जो पुराने जमाने में जो कहावत हम लोग सीखते थे कि हार्ड वर्क करना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है, पेशेंस रहना होता है, वो ये रियल लाइफ एग्जांपल से, रियल लाइफ का एक्सपीरियंसेस से ही सीख मिलता है। चाहे कितना ही आप लोगों को बोल लो, हम बोल ले, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पता तो हम लोग को भी था ना कि साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मुझे भी तो पता था मैं साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में जा रहा हूँ, आजकल भी दिखता है मुझे मैं जा रहा हूँ, फिर भी मैं जाता हूँ। मतलब अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कम जाऊं, बाकी चीजों को कम इफेक्ट हो। तो ये लर्निंग है, मतलब ये जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड कर लेना चाहिए। एंड ये नहीं, बिकॉज द टॉपिक इज व्हाई कोचेस फेल, तो ये नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हूँ फेल हुआ हूं, मतलब ये वन ऑफ द फेलियर रीजन है, करेक्ट। चाहे वी मेरा हो चाहे आर किसी और का हो। we are floating because we at least have stayed in the arena, but we've यस, also known of coaches who perished, unfortunately, because they just kept going from one shiny object syndrome to the other, from second to third, third to fourth, so on and so forth. यस, क्योंकि ये 16 पॉइंट्स में से मे बी हम लोग जो हम लोग अब अपना स्टोरी हम शेयर करें, मे बी आई एम नॉट फॉलोइंग 4-5 थिंग्स, बट Correct. स्टिल आई एम फॉलोइंग 10 थिंग्स, तब जाके मैं सस्टेन कर रहा हूँ। Exactly. Exactly. And coming to shiny object syndrome, I remember this very well. Just about 15 days ago, Pankaj was telling me that he's signed up for another 1 day seminar or 1 day sort of an event. And I told him, if you come back and tell me that these are the 3 things that you're not doing, and this is what you need to do, you are going to listen to me. You are going to listen to a lot of music from me, because having interacted with him for such a long time, I've understood that yes, he does, and he's been humble enough to confess this, that shiny object syndrome is one of his challenges. So I was just being there for him, and I'm telling him, don't get into that zone. So yeah, shiny object syndrome is absolutely real. I have been there. I have signed up for programs just because I thought, oh, अगर मैं ये skill set सीख गया ना, dude, मेरा business को बहुत फर्क पड़ जाएगा. Obviously, knowledge से फर्क पड़ता है, but unless and until you don't execute it, unless and until you don't put it to practice, कितना भी knowledge डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So यस, stop going behind the shiny object syndrome, start going into the shiny execution syndrome. जो भी execute करोगे वो automatically shine करेगा. यस, करेक्ट। अभी का अब जो पॉइंट है ना, क्या बोल कुछ रहे हो? बोलना चाहते हो शाइनी ऑब्जेक्ट के बारे में? और अब ठीक है, उसमें तो मैं भी एक पॉडकास्ट कर लूंगा, ठीक है, आप आगे बताइए, इसको छोड़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए है ना, मेरे को से बोलते ना, पेट्रोल का ऐसा पूरा रिफाइनरी है, उसमें मुझे सिर्फ एक ऐसे माचिस जलानी और ऐसे डाल देनी है, फिर हम देखेंगे आने वाला क्या भौचाल होने वाला है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पंकज पता नहीं कितने सालों से कितने लोगों से बात कर चुके हैं. हाँ। वन मतलब रीजन. हाँ. यस, अब बोलिए। वन रीजन, अ डेफिनेट रीजन, मतलब बाकी सारे रीजंस की वजह से अगर यूनिवर्स का आपके ऊपर छत्रो छाया है और आपके ऊपर अगर कोई तरीके से प्रोटेक्शन है तो आप निकल भी जाओगे. लेकिन वी बोथ ऑफ अस कंप्लीटली बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू succeed in the business of coaching in the long term or in the medium term if you don't run your ads. And one myth that some coaches are trying to build, or one reason why coaches are failing every day, is because they want to become an exception in the world of coaching. They want to succeed without running ads. And I am yet to meet a single coach who has not run a single rupee of ad and has tried and has built a scalable model, scalable coaching business. And even if they have, believe me, they're just going to be a very, 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 very एक्सेप्शन। exceptions. So you don't have to build your business on a rule of exception. यस। So one reason why coaches are failing is because they are not running ads. And who better to talk to about this particular subject than Pankaj? So Pankaj, यस,
रिफाइनरी में मैं आग लगा चुका हूँ। चलो बताओ हमें इसके बारे में। यस, तो बेसिकली मतलब मुझे लगता था कि मैं स्टोरी नहीं सुना पाता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन खराब है, स्टोरी टेलिंग मुझे सीखना है। बट आज का एपिसोड और पिछला वाला एपिसोड जो हम लोग किए थे, तो उसमें मुझे लग रहा है मेरी स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी है, मैं तो स्टोरी बता सकता हूँ। मतलब प्रॉपर टॉपिक मिलना चाहिए तो हर पॉइंट में मैं स्टोरी बता सकता हूँ। तो इसमें भी एग्जैक्टली। बेसिकली क्या होता था कि जब मैं 7 डेज का कोचिंग करता था, हम्म। तो उस समय मेरा पहला मतलब कोई पहला फ्यू स्लाइड्स के अंदर एक स्लाइड होता था कि व्हाई यू शुड नॉट डू ऑर्गेनिक ओनली, खाली ऑर्गेनिक मीडियम्स पे क्यों डिपेंड नहीं करना चाहिए, या व्हाई हम्म। यू शुड रन फेसबुक एड्स, इस तरह का कुछ स्लाइड होता था। तो उसमें मैं कोटेशन देता था क्योंकि मैं उस समय आई हैड अटेंडेड वन ऑफ राजीव तलरेजा's वेबिनार। करेक्ट। वो बिजनेस कोच है, तो वो बताया उसका उनका एक स्लाइड था कि ये if your business doesn't have a pipeline of leads, your करेक्ट। business is going to die soon या fail soon। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, वो खाली कोचेस का नहीं बात कर रहे। लीड्स क्या है? लीड्स मतलब काइंड ऑफ इनकमिंग प्रोस्पेक्ट हो गया, या लीड्स, लीड्स तो लीड्स होता है ना, मतलब जो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, इंक्वायरीज, इंक्वायरी हो करेक्ट। गया, लीड हो गया, इंक्वायरीज, हाँ। कुछ भी। चाहे आपका फिजिकल शॉप हो, फोटोशॉप हो, या फिर स्टूडियो हो, या फिर क्लोथिंग स्टोर हो, या फिर डिजिटल का कुछ शॉप हो, आप कोर्सेज बेच रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, एजेंसी चला रहे हो, हर जगह आपको इंक्वायरीज तो चाहिए ना, लोग तो चाहिए ना जिससे आप बात करो, लीड्स तो चाहिए ना। तो करेक्ट। अगर आपके बिजनेस में लीड्स नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। हम्म। तो ये मुझे एकदम हाईली रेजोनेट कर रहा था कि मेरे ऑडियंस के लिए सही बात है ये। मैं वहां से वो कोटेशन चिपकाता था और नाम भी उनको देता था कि यहाँ से मैंने सीखा राजीव जी से। करेक्ट। तो ताकि ये लगे कि हाँ ये सही बात है। तो बात वो सही है। बात क्या था उसमें कि अगर आपके पास लीड्स ही नहीं रहेगा तो बेचोगे किसको, क्या बेचोगे? कोई भी हवा बिजनेस को। कर रहा है क्या? हवा को बेचोगे, हवा बेचोगे। वही। तो अगर हम लोग कोचेस का ही बात कर लेते हैं, तो आपको पहले लीड्स चाहिए रहेगा, मतलब वेबिनार करना है तो वेबिनार में अटेंडेंस चाहिए, लोग चाहिए। तो लीड्स तो आते रहना है ना, मतलब प्राइम प्राइम चीज तो है कि लीड्स आते रहना है। करेक्ट। आप ऐड से लाओ, चाहे बाहर जाके पैम्पलेट बांट के लाओ, चाहे रेडियो में ऐड दे के लाओ, चाहे कुछ भी करके लाओ, लीड चाहिए। अभी मार्केटिंग का नहीं बात कर रहे कैसे करना है, करेक्ट। करेक्ट। जैसे भी करेक्ट। करके लीड लाओ, बहुत तरह का मेथड होता है। करेक्ट। तो होता है क्या है यहाँ पे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो, ये कल भी बात हो रहा था क्लाइंट से, तो वो बोल रहे थे कि मैं तो व्हाट्सएप स्टोरी में लगा लेता हूँ ऐड, दिक्कत क्या है? तो हम बोले कि व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा सकते हो, इनफैक्ट इसके बारे में ये सबसे क्या है, मुझे ऐड आइडियाज मिलता है कंटेंट का, तो मैं यूट्यूब पे और कंटेंट बना सकता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर वो व्हाट्सएप पे चला रहे हो या फेसबुक पे चला रहे हो, तो कितने ही दिनों तक सस्टेन कर लोगे आप बिजनेस? व्हाट्सएप पे मान लेते हैं आप, आपका 1000 कांटेक्ट है फोन पे, डेढ़ हम्म। हजार 2000 होगा लगभग, उतना ही होता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता है ना करेक्ट। मनीष? हाँ, तो होता क्या है इसमें कि 1500 2000 में से 1500 2000 तुम ज्यादा बोलती है, वो तो मैं वही बिजनेस वाले सोच के। रहा था, मैं हाँ इसी के लिए मैं फोन उठा के अपना चेक कर रहा था कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं कितने, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे पास 1,500-2,000 हाँ, कॉन्टैक्ट्स हैं जो जनरली भी 300-400 होते हैं। हाँ, बट मान लेते कि बिजनेस वाला है, कोई है सुबह शाम लीड्स इकट्ठा कर रहा है, तो 1500-2000 मान लेते हैं, वर्स्ट केस में 1000 कांटेक्ट है। अब उसमें से मैक्सिमम 70-80% आपके रिलेटिव फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स होंगे। 1536 कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, 1500। तो हम्म। इसमें से मैक्सिमम लोग आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, रिश्तेदार हाँ होंगे, हाँ, ऑफ दोस्त कोर्स। होंगे। और मुझे अपना पर्सनली ऐसा लगता है कि अ, वो लोग आपसे नहीं खरीदते होंगे, मतलब जनरली बिल्कुल वो नहीं। लोग नहीं खरीदेंगे, या तो ये बोलेंगे फ्री में दे वन दो, या फाइव तो थ्री ये 1536 कॉन्टैक्ट में से अगर मेरे को 15 भी मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ 15 मतलब कस्टमर्स। यस। क्योंकि एक वो कॉन्सेप्ट भी होता है ना, एक और प्रोवर्ब, आज तो मुझे पूरा बोलने का मौका मिलेगा, कि एक घर की मुर्गी दाल बराबर वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट। भी होता है कि नहीं मैं इनसे नहीं सीखूंगा, या फिर ये मुझे क्या सिखाएगा, ये तो मेरे सामने ही बड़ा हुआ है, ये तो हमसे हाँ। सीखेगा, वो है कुछ भी है, या फिर जो भी फ्री में सिखा दो। तो सबका अपना हाँ। अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें से आपका आपका एक्चुअल जो ऑडियंस है, हम्म। अगर आप मनी माइंडसेट सिखा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो सब हो सकता है कि 1500 लोगों के लिए एप्लीकेबल हो ये चीज, करेक्ट। बट मानेगा नहीं। चलो नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे आप कर ले रहे बिजनेस, कोई आपका वो माइंडसेट क्लियर है, वो मेरा मेरा ब्लॉक है कि रिश्तेदार के साथ बिजनेस मुझे करना पसंद नहीं है, या फिर मुझे आता नहीं है, मेरी हम्म। ब्लॉकेज है। बट मान लेते हैं वो सब ब्लॉकेज आपके पास नहीं है, आप कर रहे हो, या फिर हमारे ऑडियंस में से कोई कोच है वो कर रहा है, कर लिया 1500 में से 100 लोग ले आया, 15 क्यों, आप मान लेते 100 लोग को ले आए, 200 ले आओ, 500 लोगों को ले आओ, चलो ठीक है। हर कोई कर रहा है।
1500 में से 1500 लोगों को ले आओ बस, चलो ये उससे भी ज्यादा परफेक्ट हो गया। भगवान बन गए आप हाँ। तो 1500 लेके आए। उसके बाद क्या? उसके दुकान बाद बंद। कहाँ कर रहे हैं? हाँ दुकान बस। बंद। हाँ, और यही यही लेकर आते लोग मेरे पास इशू कि पहले तो मेरे पास जो भी कांटेक्ट था वो लोग तो आते थे, डेली कुछ ना कुछ होता था, 2 3 4 करके कोर्सेज बिकता था। फिर अब कोर्स बिकना बंद हो गया, तो कैसे करते थे मार्केटिंग? हाँ, मैं फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करता था, मैं व्हाट्सएप में पोस्ट करता, बात एक ही है, हम व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जांपल लिए, बट वही सेम चीज फेसबुक ग्रुप पे भी होगा। फेसबुक ग्रुप पे अगर आप बात करोगे, नहीं मैं तो फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, वहां पे तो 50,000 ऑडियंस है, पूरा इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, 2 लाख ऑडियंस है, ऐसा ऐसा चार चार ग्रुप है मेरे पास। तो आपके पास 4 ग्रुप है, मान लेते 2 लाख ऑडियंस है टोटल उस ग्रुप में। तो पहली बात तो आपको पोस्ट करने मिलेगा नहीं वहां पे, क्योंकि आप उस ग्रुप के एडमिन नहीं हो, अनलेस अंटिल आप एडमिन हो तो अलग ही सिचुएशन हो गया कि आपका ब्रांड आप बना रहे हो, तो कॉन्ग्रेट्स फॉर डूइंग दैट। बट वो अगर ग्रुप आपका नहीं है तो आपको पोस्ट करने जनरली मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केटिंग करोगे तो फिर वो लोग बैन कर देता है। करेक्ट। कोई कोई ग्रुप होता है जहाँ मार्केटिंग अलाउड है। तो हम्म। अगर मार्केटिंग अलाउड है, मुझे तो वो याद आ रहा है पूरा का पूरा कि मैं वापस से सेमिनार कर रहा हूँ 1 घंटे का, जैसे 7 days वाला था। करो करो करो, हाँ वही तो, यही तो पर्सपेक्टिव है इस पॉडकास्ट का। अभी तो हाँ। तुम्हारी पर्सनैलिटी खुल के आ रही है, अभी तो देखो हर एपिसोड में तुम और आगे बातें करते जाओगे। हाँ, तो बेसिकली ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए फेसबुक दो ग्रुप हाँ, एडमिन। फेसबुक ग्रुप है, और आप एडमिन हो फेसबुक ग्रुप, ये आप फेसबुक ग्रुप के एडमिन नहीं हो, और मान लेते हैं ऑफ कोर्स 99% चांस है आप नहीं हो, होते तो आप ऑलरेडी उस ग्रुप में चला रहे होते, इतना दिमाग उमाग नहीं लगाते इधर, क्योंकि आपका बिजनेस ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन चांसेस है कि आप एडमिन नहीं हो, तो आपको पोस्ट करेंगे तो आप वो एडमिन आपको बैन कर देगा कि क्यों बार बार पोस्ट करते हो वार्निंग देके। लेकिन आप अगर बोलते हो कि नहीं ये तो ओपन मार्केटिंग ग्रुप है, सब कोई पोस्ट करता है, तो बस वही तो फेलियर का रीजन है, क्योंकि सब कोई पोस्ट कर रहा है, खाली आप इकलौता नहीं हो। 1.5 लाख में से 200 300 लोग भी हर दिन पोस्ट करने लग गए, तो फिर आपका ऐड कहाँ दिखेगा, किसको दिखेगा? दूसरी बात, आजकल ऑर्गेनिक रीच रीच भी कम हो गया है। तो ये 1 2 एग्जाम्पल हुआ। फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में पोस्ट कर रहे हो कहीं कहीं, तो वहां पे भी आप पोस्ट करोगे तो वहां पे भी लिमिटेड रीच है, वहां पे भी आपका कंपटीशन है। तो बेसिकली कुल मिला के बात ये है, ऑर्गेनिकली आप करो, मतलब हम ये नहीं बोले कि ऐड चलाओ नहीं चलाओ, हम्म। ऑर्गेनिकली आप कर लो, करने के बाद जब आपका बिजनेस बंद हो जाए तो फिर आप चालू कर लेना एड्स, या क्यों फिर शुरू करना से है ही। इतना मेहनत? क्यों किसी का बिजनेस बंद करवाना है भाई? चुपचाप पहले दिन से एड्स के लिए बजट बनाना चालू करो। चलो ठीक है, आपके पास एड्स के लिए बजट नहीं है, उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ही पहला क्लाइंट आता है, पहले क्लाइंट को आपने 5,000 का बेचा, 5,000 का एड चलाओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके चालू करते रहो पैरेलली, मतलब बस। दोनों करो। मतलब हम लोग का टोटल बात यही होता है हमेशा हर पॉडकास्ट में, दोनों करो और हाँ। पैरेलली करते रहो, खाली ऑर्गेनिक पे डिपेंड नहीं हो सकते। आप बोल नहीं सकते नहीं कि मेरा कंटेंट अच्छा। अनदर एग्जांपल हो गया कि यूट्यूब पे हम कंटेंट पोस्ट करेंगे, करेक्ट। तो पहला दिन का मेरा पूरा 1 घंटा इसी पे जाता था, एग्जांपल ले लेके यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे एग्जाम कंटेंट। तो अच्छी बात है, हमको भी करना, आजकल हम लोग वही कर रहे हैं जो हम 2 साल पहले 3 साल पहले बोलते थे करेंगे, आज कर रहे हैं वो चीज लाइव। बट सिर्फ हम 3 साल तक यूट्यूब पे पोस्ट करते रह जाते हैं शुरू से, तो आज मुझे रेवेन्यू वहां से आना चालू होता है, चाहे ब्रांड प्रमोशन से, यूट्यूब से डायरेक्ट कैसे करेक्ट। भी आता है, आ जाता है 2 3 साल 4 साल बाद जब कंसिस्टेंसी के साथ था। तो तब तक क्या बीच में है? बीच में वो क्या, या तो मेरे पास, क्योंकि हम जॉब छोड़ दिए, जॉब छोड़ के हम कोचिंग में आ गए, तो अब क्या करें बीच में? तालियां बजाओ। तो वो खत्म हो गया ना, फिर अपने आप को जबरदस्ती खाली बोलेंगे ये है वो है, कुछ नहीं है। तो हाँ, तो मतलब यही है, फिर उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब ऐड चलाना पड़ेगा, चाहे यूट्यूब में भी आप कंटेंट कितना ही बनाओगे अच्छा है, बट डे वन से प्रॉफिट नहीं आता है कहीं पे भी। बट ऐड में आपको डे वन से आ सकता है। तो मैं करेक्ट। क्लाइंट्स को क्या बोलता हूँ कि कम बजट है तो कम बजट से चला लो, और कम बजट ज्यादा बजट का तो बात ही नहीं करते, बजट नहीं है वो तो मैं एक्सेप्टेबल, आप बोल दिए फिर भी ये कर लो, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल कम होता है, क्योंकि बिजनेस चालू करने बैठे हुए हो वो। हाँ। बिजनेस है तो थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे लोन लेके करो चाहे कैसे करो। हम्म। और बट ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे तो चलो ऑर्गेनिकली थोड़ा बहुत क्लाइंट लिया इधर उधर से व्हाट्सएप से, बट जितना जल्दी हो चलो उसको भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं हम। बट जितना भी हो उसको चालू कर दो, ऐड करेक्ट। पैरेलली करेक्ट। चालू कर दो, ताकि डे वन से ही आपको लीड्स आना चालू हो जाए। और फिर जो राजीव तलरेजा जी बोलते थे कि लीड्स आर द पाइपलाइन ऑफ योर, मतलब ब्लड ऑफ योर बिजनेस काइंड ऑफ बोल सकते हो आप। कि करेक्ट भैया। हाँ, तो फिर लीड आते रहेगा तो आप इंटरेक्ट करोगे तभी तो बेचोगे। कल मेरे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वो पूरा डिप्रेशन का 8 मिनट का मैसेज भेजे थे हमको। वो 5वां क्लाइंट नए आए थे। तो मैं लेता नहीं हूँ, बट वो रिकमेंडेशन से आए थे तो मैं उनको ऑनबोर्ड किया था। तो वही बता रहे थे, मतलब कि
कि अभी तो मतलब वो मेरे को नहीं कुछ कह रहे थे, वो दूसरा एजेंसी के साथ काम कर रहे थे, तो वही बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी कोशिश करिए, कर दीजिए, क्योंकि मेरा तो अभी 10 दिन से पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या करूं, मेरा तो लीड्स ही नहीं है। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बिकता है, सब कर सकता हूँ, मैंने तो इनका मास्टरमाइंड भी ज्वाइन कर लिया, सेल्स भी मेरी तगड़ी हो गई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं बेचूं किसको, मेरे पास तो लीड ही नहीं है, मैं तो हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ बिजनेस बंद कर दूं, इसमें बिजनेस में है ही क्यों, कभी ये बैन हो जाता है, कभी वो हो जाता है, तो कभी ऐड नहीं चलता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये चैलेंज को हटाने के लिए आपको ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही करते रहना पड़ेगा। मतलब हम्म। लीड तो आपको चाहिए कंटिन्यूअसली, एड से अच्छा कोई सोर्स नहीं है जहां कंटिन्यूअस लीड मिले शॉर्ट टर्म में, इनिशियली। और फिर बाद में आप ऑर्गेनिक भी करो, ये भी करो, दोनों करते रहो, दोनों जगह से लीड मिल रहा है। तीसरा चीज करो, चौथा चीज करो, रेफरल करो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, जितना कुछ हो सकता है। जो हमको नहीं भी आता है, आप वो सब भी अगर आपको आता है तो वो भी कर लो, बट एड चलाओ। हाँ, ad is the fundamental base of every business. हम्म। Eventually, you will, we hope that you get 10 leads every day on your ads and get 100 leads organically. But to reach there, you will need to start with your ads. To reach यस, the maximum crowd, you will have to start somewhere. So do not ignore ads. यस, इनफैक्ट मैं एक इनसाइडर कंटेंट भी दे देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे जो मेंटर है वो हाँ, हम लोग को बोलते हैं कि उनका स्ट्रेटेजी क्या चल रहा है आजकल। करेक्ट, वो बताइए। फ्री कोर्सेज बनाते हैं, 100 डे लीड जनरेशन चैलेंज, 100 डे ये 100 वो, और या फिर ब्लॉग ब्लॉग लिखते हैं, करेक्ट, पॉडकास्ट करते हैं, तो उस पे भी वो ऐड चलाते हैं। मतलब करेक्ट, कोर्सेज और वेबिनार पे छोड़ दीजिए, वो अपने ऑर्गेनिक कंटेंट पे ऐड चलाते हैं, ताकि वो और जल्दी जल्दी स्प्रेड हो। और ये करेक्ट, बहुत यूट्यूबर भी करते हैं ये चीज, करते ही कि हैं। हाँ, इनफैक्ट एक मैं उनको सुनता हूँ, कोई एक आचार्य है, आगे का पार्ट मैं हटा देता हूँ, हाँ, एक हाँ, अच्छा, आचार्य है मतलब वो, हाँ। वो स्पिरिचुअल कंटेंट है उनका, हाँ, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल पे तौर मुझे हाँ, उनका हाँ, बस आया था। हाँ, तो वो बोले कि ये अपने आप नहीं फैलता है, ये जो आपको दिख रहा है कि मैं इतना वायरल हो जा रहा हूँ, ये हो जा रहा हूँ, अपने आप में रातों रात हीरो नहीं बन गया जादू से, यूट्यूब की वजह से नहीं बन रहा हूँ। मैं पैसा लगा रहा हूँ पीछे एड्स पे, इस पे लगाना पड़ता है। मतलब वो डोनेशन का रीजन बोल रहे थे कि आप लोग डोनेशन दोगे तब मैं एड चलाऊंगा और बड़े स्केल पे लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। वो अपना अपना मिशन है जो भी है, वो अपने करेक्ट, मिशन पे हेल्प करेंगे, क्यों? ताकि मतलब उसके लिए उनको चाहिए, वो भी एड चला रहे हैं अपने कंटेंट पे, वो मेक अपने सेंस। कंटेंट को प्रमोट करे। जैसे हमारा पॉडकास्ट है, हम पॉडकास्ट को प्रमोट, अभी हमारा कितना आ रहा है, 118 सब्सक्राइबर हो गया आज। और एंड थैंक यू ऑल फॉर, अगर जो सब्सक्राइबर है वो लोग देख रहे हो, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। तो अ, हाँ, तो ये 118 सब्सक्राइबर है और 100 150 200 व्यूज जाता है, उनका मिलियंस में जाता था। तो बोले कि मिलियंस में इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ, और पे करेक्ट, करके एक बार वो मिलियंस में ले जा रहे हैं, तो वो और मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। करेक्ट, मतलब जो हमारा भी 100 150 सब्सक्राइबर, अगर हम लोग इसको पे करके ग्रो करवा दे, जैसे ही हम लोग का 1000 2000 5000 होगा, तो आज हम और आप प्रमोट कर रहे हैं, उस समय वो 1000 में से एक दो फैन और निकलेगा, वो लोग प्रमोट करेगा, 10,000 में से और लोग फैन निकलेगा। तो ऐड चलाने का वो भी रीजन होता है कि आप जितना जल्दी ग्रो करोगे उतना जल्दी आपको दुनिया और ग्रो करवाएगा ऑर्गेनिकली। करेक्ट। सब कनेक्टेड है, हर कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज का पॉडकास्ट का नाम पंकज का प्रवचन। हाँ, बोल बट सकते हैं। बट सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई वांटेड टू क्रिएट अ पॉडकास्ट लाइक दिस, बिकॉज आप जितना क्लियरली एड्स ना चलाने का पर्सपेक्टिव दे सकते हो, वो मैं चाहूं तो भी नहीं दे सकता, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। उतना वो एक्सपीरियंस है आपका। एंड हाँ। यही आज कोइंसिडेंटली आज का हैट्रिक होने वाला है। वी स्टार्टेड विद शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, वी हैव हम्म। गॉन टू पीपल हु डोंट वांट टू रन एड्स, उससे बड़े वाले महा काम महाकार्य करने वाले हम्म। सज्जन महापुरुष जो आते हैं आपके पास और कहते हैं एड्स डोंट वर्क, हम्म। ये भी और मेरा वो कहते हैं और वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि होता उनको है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती नहीं है। नहीं नहीं, वो सही बोलते हैं। अब वो सब बताइए ऐड ऐड इसके। उड नहीं ऐड उड नहीं चलाना चाहिए, मत चलाओ। अगर आप लोग बोल रहे हो नहीं काम करता, मत चलाओ। पंकज जी इस चीज पंकज जी परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले पॉइंट के ऊपर जरा प्रकाश डालेंगे। हाँ, कि ऐड नहीं चलाना चाहिए, हाँ, मत चलाइए, छोड़ दीजिए, ऐश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनफैक्ट ये वापस अब कमिंग टू सीरियस नोट, वापस से ये भी मेरा फर्स्ट डे का, मतलब फर्स्ट डे मेरा पूरा माइंडसेट बिल्ड करने में जाता था वो 7 डेज में। हाँ। तो ये भी उसका हिस्सा था। मुझे तो लग रहा है वो प्रेजेंटेशन खोल के पूरा दिखा देना चाहिए। तो उसमें बेसिकली क्या होता था, उसमें भी हम लिखते थे कि एक स्लाइड बना होता है कि आफ्टर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ कंटेंट हियर एंड देयर, चेकिंग टॉप क्वेश्चंस इन यूट्यूब एंड कोरा एंड ऑल,
लोग यही पूछते हैं हमसे कि पंकज मेरा एड्स नहीं चल रहा, एड्स चल रहे तो क्लिक्स नहीं आ रहे, क्लिक्स आ रहे तो लीड्स नहीं आ रहे, लीड्स आ रहे तो सेल्स नहीं आ रहे, सेल्स आ रहे तो वो लोग रिटेन नहीं हो रहे। ये स्लाइड का कंटेंट था। तो इसका एक्सप्लेनेशन वही होता था कि एड्स चलता है, आप चला नहीं पाते हो। करेक्ट। बाइक चलाता है जो तो चला सकता है उसको। हाँ मुझे नहीं आता आज के डेट में बाइक चलाने। हाँ। तो ऐसा नहीं कि बाइक नहीं चल सकता है, कोई नहीं चला सकता है। करेक्ट। और मुझे नहीं आता तो मेरी मर्जी, नहीं आता मुझे नहीं सीखना, और रीजन कुछ और है, गिर पड़ गए थे वो, ठीक है। हाँ। तो चलता है एड्स, कहने का मतलब इसको थोड़ा डायरेक्ट रखते हैं कि एड्स चलता हाँ। है, आप नहीं चला रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इसका करेक्ट। लॉजिक भी हम देते थे वहां पे, मतलब जो भी स्लाइड था हम सब लॉजिक के हिसाब से बात करते थे। वहां ग्राफ दिखाते थे कि फेसबुक जो था वो हर ईयर ग्रो करे जा रहा है, उसका यूजर बेस ग्रो करे जा रहा है। और करेक्ट। उनका मैक्सिमम रेवेन्यू उस टाइम पे उसी से आता था, एड से आता था, शायद आज भी उनका आज मैक्सिमम भी वहीं रेवेन्यू। से आता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू। हाँ। तो एड से आ रहा है, यूजर ग्रो कर रहा है, मतलब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, फेसबुक में वो लोग और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ग्रोथ करवा रहे हैं, और ग्रोथ करवा रहे, रेवेन्यू चाहिए। और एडवर्टाइजर भी ग्रो कर रहा है पैरेलली, सिर्फ यूजर नहीं, एडवर्टाइजर भी ग्रो कर रहा है। तो हर कुछ ग्रो कर रहा है, दोनों ग्रो कर रहा है, यूजर भी और एडवर्टाइजर भी। तो एक ही एडवर्टाइजर क्यों बार बार, मतलब ऐसा तो नहीं है ना हर दिन नया नया एडवर्टाइजर ला रहे, कुछ पहले का भी एडवर्टाइजर रहता है, बाद का भी रहता है, तभी तो मिक्स होके वो ग्रोथ का कर्व बनेगा। तो अगर ग्रोथ का कर्व बन रहा है, बार बार दिख रहा है क्लियर क्लियर डेटा से, पूरा उनका पीएनएल, मतलब कोई खाली बोल नहीं रहे, उनका पूरा कंपनी है वो तो प्रॉपर है, उसका दिखता है हर कुछ कि ये ग्रोथ हो रहा है। इतना लोग बार बार पैसा में डाल रहा है, फेसबुक में पैसा डाल रहा है, तो पागल थोड़ी है पैसा डाल रहा है फेसबुक में, कुछ तो सोच के डाल रहा है। तो सोच के डाल रहा है तो इसका मतलब आप सोच लो कि एडवर्क करता है, यही लॉजिक मान लो। एडवर्क करता है तभी तो पैसे डाल रहे, नहीं तो पैसे क्यों डालेगा, वो फेसबुक चलेगा ही क्यों। इसका तो सबसे सिंपल एग्जांपल यही होगा कि जो भी इंसान इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रेगुलर बेसिस पे टाइम स्पेंड करता है, हम्म। आप खुद देख लीजिए ना। आई एम प्रीटी श्योर डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आपके पास वो सेम ई कॉमर्स ब्रांड्स के एड्स आते रहेंगे। यू विल सी द सेम एड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको सेम कोचेस के एड्स नजर आएंगे, आपको सेम ट्रैवल कंपनीज के, होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के एड्स वापस बार बार नजर आते हैं। क्यों आते हैं? सपोज अगर आज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक रेस्टोरेंट का ऐड जो बार बार आपको नजर आ रहा है, एक होटल का ऐड जो आपको बार बार नजर आ रहा है, तो जब मैं तो किसी होटल का या रेस्टोरेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको एक ऐड नजर आ रहा है आपके दिमाग में, वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वो ब्रांड बार बार लगातार आपको वो ऐड दिखाया जा रहा है। हम्म। तो क्योंकि वो रेवेन्यू कमा रहे हैं, क्योंकि उनको एक पॉजिटिव आरओएस मिल रहा है, तभी तो वो बार बार ऐड कर रहे हैं। हाँ। और बस दूसरा एग्जांपल इसी से कनेक्टेड एग्जांपल एक और हो गया हाँ कि मतलब आप एग्जांपल को और छोटा कर रहे थे, रियलिस्टिक बना रहे थे, तो उसको हम और रियलिस्टिक बनाते हैं कि हाँ। वो जो कोचेस को ऐड दिख रहा था उस चीज का, तो हम्म। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से आप लोग बाय भी किए होंगे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ वेबिनार रजिस्टर भी किए होंगे, ऑफ फ्री कोर्स। मतलब हर कुछ, या तो बाय किए होंगे, रजिस्टर किए होंगे, ऐड ऐड पे क्लिक करके इंटरेक्ट कर रहे हैं आप। तो जब करेक्ट। आप भी इंटरेक्ट कर रहे हो तो बाकी लोग भी इंटरेक्ट करेगा। हम्म। फिर लोग बोलते हैं बी टू बी के लिए काम नहीं करता है, बी टू सी के लिए काम नहीं करता है। तो यहाँ पे तो एड्स का मास्टर क्लास अभी इस पॉडकास्ट पे देना नहीं है। बट हाँ, कहने का मतलब अगर आप सही तरीका से चलाओगे तो एड्स काम करता है, नहीं हो सकता है कि नहीं काम करेगा। टाइम लगेगा, फिगर आउट करिए उसको, अलग अलग चीज टेस्ट करिए, बट काम करता है। सेकेंड चीज होता 100%। है। हाँ। हाँ, अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वही मतलब इस जितनी भी बार पंकज बोलेंगे एड्स काम करता है, मैं उनके पीछे वो होता है ना, आगे नेता करता खड़ा है, है, करता हाँ है। ऐसा करता है मैं वो करता रहूंगा। ठीक है। हाँ। और इसके बाद भी अगर किसी को लग रहा है, आई थिंक लगना नहीं चाहिए, लॉजिकली तो नहीं लगना चाहिए, बट अगर किसी का कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है तो नीचे बताइए, हाँ मैं भी प्लीज। अपने उसको अपडेट करूंगा। बट अगर कोई फालतू का आर्ग्यूमेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या नुकसान है, आप ही नहीं का है ना। बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। करेक्ट। अगर आपने फालतू का नीचे आर्ग्यूमेंट किया, हम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, डिलीट कर देंगे। हमको आप जैसा ऑडियंस नहीं चाहिए, आप हमको हम्म। अनसब्सक्राइब करके निकल सकते हो। हाँ, मतलब आप वो कर दो, लेकिन मेरे केस में तो हम उसको अनब्लॉक भी नहीं करेंगे, मतलब हम बोलेंगे ठीक है आप मत चलाओ ऐड, हाँ। मत चलाओ, मेरे को क्या मतलब। कल हम उस ऑडियंस अपने नहीं। लीड लीड को हाँ। वही बोल रहे थे कि वो बोल रहा था नहीं, यूट्यूब में ही पोस्ट करना अच्छा है, क्योंकि मेरा कंटेंट इतना सॉलिड है, हम मान ही नहीं सकते कि ऐड का जरूरत है। अगर आपके बिजनेस को, प्रोडक्ट को मार्केटिंग का जरूरत पड़ गया तो आपका प्रोडक्ट वेस्ट है। उन तो फिर सज्जन को हमारा फिर हम बोले एप्पल, नमस्कार। एप्पल वाले जो फाउंडर है वो लोग देख लेते तो वो लोग तो फिर टेंशन में आ जाते, बोले अरे कि मार्केटिंग हम लोग कर ही क्यों रहे इतना। उनको हम एप्पल का बैलेंस शीट दे देते, वो एप्पल चलाए। सही बात है। और टीवी में हमारे कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड आते रहते हैं इतना,
हम लोग तो वेबिनार बेच रहे हैं, वहां पे वेबिनार बोल रहे लोग जाके रजिस्टर करो, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बेचते हैं, टीवी पे साबुन का ऐड आता है, कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता है, तो वो सब तो कुछ बेचते भी नहीं है, वो भी तो ऐड चला रहे हैं ना, क्यों चला रहे हैं? भले फेसबुक पे नहीं चला रहे, कहीं और चला रहे, बट ऐड तो चला रहे हैं ना। एप्पल और बाकी के सारे कोल्ड ड्रिंक के एप्लीके अपना एड्स, और ये जो भी सेल फोन के बाकी के ब्रांड्स, एयर कंडीशनिंग के ब्रांड्स, लाइट के फैन के ब्रांड, ये सारे बेवकूफ है, इनको कुछ नहीं आता है। वो जो आपका कल जो प्रोस्पेक्ट था, जिनके पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जो सिर्फ एक यूट्यूब के वीडियो के ऊपर पूरा बिजनेस खड़ा हो सकता है उनका, उन्हीं में दिमाग है, बाकी सब बेवकूफ। वही, मतलब करने को करो अब, लेकिन वो टाइम लग जाएगा। ये नहीं बोल करेक्ट। रहे हम लोग कि ये लोग मत सोचना कि नहीं कर रहे, चलता है, बट 2 साल 3 साल कितना भी लग जाएगा। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मुझे लेटेस्ट डेटा मुझे पता नहीं है, पर शायद कुछ ऐसा था कि 1000 सब्सक्राइबर गेन होने में, मतलब जो मिलियंस ऑफ, जो जिनका सब्सक्राइबर रहता है मिलियंस ऑफ कुछ, तो उनका 1000 सब्सक्राइबर गेन होने में कुछ साल 1.5 साल लगता है, पहला करेक्ट। 1000। और करेक्ट। फिर उसके बाद से डेली का 1000, डेली का लाख लाख सब्सक्राइबर्स आता है फटाफट। तो मुझे भी कुछ ऐसा दिख रहा है, हम लोग का अभी 4 महीना से 100 150 सब्सक्राइबर आया। और ये सेम वो शुगर केन का भी शायद वही कॉन्सेप्ट होता है, ट्री का, कि स्टार्टिंग का 1 1.5 साल तक बैम्बू। थोड़ा सा आएगा। बैम्बू। इसका बैम्बू। बैम्बू। ठीक है। शुगर केन मुझे नहीं पता, हो सकता है वैसा ही होगा, लेकिन नहीं बैम्बू का मुझे। हाँ, मतलब वही कोई एग्जांपल था, मुझे वो हाँ। थोड़ा वीक था, बट ठीक है। शुगर आप बैम्बू का बोले, हाँ, कि वो रहता है कि बहुत दिन तक नहीं चलता है, फिर अचानक से लास्ट वाले ईयर में बहुत जल्दी से आता है, कुछ ऐसा ही होता है ना। करेक्ट। वो भी होता तो है। तो वही घुमा फिरा के सब जगह सेम बात है कि ऐड चलाना चाहिए। और अगर आप बोल रहे हो कि लीड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा, लीड कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, आपका अटेंडेंस नहीं आ रहा, वेबिनार सेल्स नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो ठीक है। पिछले एपिसोड में मनीष जी एडवर्टाइज किए थे अपना प्रोडक्ट को, तो इस बार मनीष जी मैं आपसे बिना परमिशन लेके हम मान लेता हूँ कि परमिशन मिल चुका है, क्योंकि मैंने आपको परमिशन दिया था। करेक्ट। करेक्ट। तो प्लीज गो अहेड। यस, तो बेसिकली ऑडियंस के लिए, अ, अगर आपको ये चीज में चैलेंजेस है, तो आप ऑफ कोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एड से रिलेटेड जितना भी चैलेंजेस आपका कोचिंग बिजनेस में, कहीं पे भी इनफैक्ट चैलेंजेस है, कोचिंग बिजनेस तो मेरा मतलब वो हो गया, मतलब ब्लड में चला गया अब, कि वैसा है कि ठीक है, जाने दो उसको एग्जांपल। बट ठीक है, हाँ, कि मतलब रग रग में कोचिंग बिजनेस वाला आ गया, कि अब कुछ भी रात को भी आप पूछोगे तो कोचिंग बिजनेस का आगे का चीज भी बता देंगे आपको, बिजनेस कैसे चलाना है। मैं सिर्फ ऐड का नहीं चलाता हूँ, मैं ऐड चलाना कैसा है, निश वगैरह कैसे करना है, ऑफर कैसे जितना भी हम लोग टोटल बात किया आज तक, एक्सेप्ट मनी ब्लॉक, या फिर एक्सेप्ट एक्शन कैसे लेते हैं, तो एक्शन लेना वो सब मुझे नहीं आता है। ऐड से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है, वो सब आप कमेंट में देकर पूछ सकते हो। और नीचे होपफुली हम लिंक भी डाल सकते हैं, तो आप चाहो तो हमारा फ्री वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग और डिटेल्स में बात कर सकते हैं। और आपको आपको मुझसे 1 to 1 लाइव इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, जहाँ पे आप मुझसे चाहो तो पूछ सकते हो कि, या फिर आप शेयर कर सकते हो कि आप आज तक ऐड क्यों नहीं चला रहे हो, क्योंकि मैं करेक्ट। वहां पे भी वही पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं चला रहे थे ऐड आज तक। तो आप करेक्ट। उस क्वेश्चन का आंसर लेकर आइएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ठीक है, ये तो हम लोग बात कर लिए बहुत, कि ऐसा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तो हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन मेरा पेड प्रोग्राम में है, बट आपको एक गाइडलाइंस जरूर देंगे। हाँ, गाइडलाइंस भैया ही ना, मैं सॉल्यूशन। मैं मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, पंकज चीटिंग कर रहे हैं। आपको बोलेंगे कि सॉल्यूशन आपको पेड प्रोग्राम में मिलेगा, और अभी देखना 30 सेकंड में आपको एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन देंगे जो पेड प्रोग्राम में देने वाले हैं। हाँ, पेड प्रोग्राम में मतलब सॉल्यूशन दोनों जगह हम सेम ही देते आपका। हैं। हाँ। पेड प्रोग्राम में आपको खाली वो मिलता है कि मुझे पर्सनल टाइम मिलता है, मैं इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, करेक्ट। वरना स्टेप नॉलेज बाय जो स्टेप मेरे पास प्रोसेस है वो मिलता है, हाँ। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिलता है। What he is going to do right now is he is going to give you a solution which is going to definitely work for your business. It is going to give you the solution that you need. हाँ, how do you actually implement it in your Facebook ad uh, ad marketplace? How do you tweak your landing page? What kind of changes do you make in your funnel? वो obviously आपको paid program में मिलेगा, वो तो हक है, but हाँ, मतलब वो solution। कर भी नहीं सकते, कस्टमाइज तो करके बता नहीं सकते ना यहाँ पे। करेक्ट। बट करेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 पॉइंट हम लिखे हैं वहां पे। तो हम लोग लिखते लिखते हम लोग सोच रहे थे क्यों लिखे है, बट ठीक है, वो टेक्निक था मेरा लिखने का। तो सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरा तीसरा पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाँ। इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग ऑडियंस। हाँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है कि क्या किया जा सकता है अगर ऐड वगैरह नहीं, इसका बात करें हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग चैलेंजेस का, कि अगर हम्म। ऐड वगैरह आपका नहीं चल रहा, लीड क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आप हमारा वो एपिसोड भी देख सकते हो इनफैक्ट,
जहाँ पे हम ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात किए, करेक्ट। और जो यहाँ पॉइंट लिखे थे कि करना है क्या है, करना ये है कि आपको ए बी टेस्टिंग करना है। ए बी टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि अब बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखिए, जैसे फिजिक्स में शायद फॉर्मूला होता था कि सब कुछ को कांस्टेंट रखिए और एक चीज को चेंज करके देखिए। करेक्ट। तो ऐड में आप मान लेते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल वेबिनार नहीं चल रहा है, तो या फिर लीड क्वालिटी, लीड कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, मान लेते हैं एकदम सिंपल सा चीज, लीड कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि आप ऐड चला रहे हो, लीड कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो आप चेक करो, सब कुछ सेम रखो, क्रिएटिव सेम रखो, ऐड कॉपी सेम रखो, ऐड इमेज वगैरह, हेडलाइन वुडलाइन सब सेम, ऑडियंस अलग अलग चला के देखिए, एक ही क्रिएटिव का सेट 3 तरह के ऑडियंस पे चला के देखिए, देखिए सबसे सस्ता ऑडियंस लीड कहाँ से आ रहा है। अब वो आपको मिल गया विनिंग एड सेट कि हाँ वो ऑडियंस के साथ ये क्रिएटिव बहुत अच्छा चल रहा है। अब ऑडियंस को फिक्स कर दीजिए, अब बाकी चीज को टेस्ट करिए, इमेज चेंज कर करके टेस्ट करिए, ऑडियंस सेम है, अब बाकी पुराना लो जो नहीं चल रहा था उसको तो अब बंद कर दिया, अब आपके पास खाली एक ऑडियंस बचा, अब उसमें 3 अलग अलग इमेज डाल के टेस्ट करिए, उसमें चेक कर लीजिए कि क्या कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, फिर इमेज और ऑडियंस का आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल गया। अब ऐड का जो डिस्क्रिप्शन होता है, ऐड कॉपी बोलते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं, उसको आप चेंज कर करके देखिए, फिर उसका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसी तरह से आप हर एलिमेंट को एक एक करके चेंज करके ए बी टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट बोलता है, तो ए बी टेस्ट इसलिए कि ए और बी में चेक करिए कि दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या चल रहा है। और ये करेक्ट। आपको हर चीज के लिए टेस्ट करना है, आपको ऐड के लिए टेस्ट करना है, ऐड इमेज के लिए टेस्ट करना है, और ऐड का जितना भी पार्ट है उसमें तो करना ही है, फिर आप उसको लैंडिंग पेज के लिए टेस्ट करिए कि लैंडिंग पेज को और बेटर कैसे बना सकते हैं, ये वाला होस्टिंग है या वो होस्टिंग वो ज्यादा अच्छा है, वर्डप्रेस में बनाए या फिर कोई लीड पेजेस, वेब पेजेस, या फिर जो मनीष जी का फेवरेट क्या था, डॉरिक। करेक्ट। हाँ, तो डॉरिक में बनाए, उसमें चेक करिए, लैंडिंग पेज को ऊपर नीचे करके देखिए कि टेस्टिमोनियल ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, उसका हेडलाइन चेंज करके देखिए क्या होता है, वेबिनार पे चेक करिए कि ईमेल भेजते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर का ईमेल नहीं भेजते तो क्या होता है, व्हाट्सएप भेजते तो क्या होता है, नहीं भेजते तो क्या होता है। आप प्रेजेंटेशन में चेक करिए ये कि स्लाइड्स को क्या बोलते तो क्या होता है, क्या नहीं बोलते तो क्या होता है, हर जगह आपको ए बी टेस्टिंग करना है, वही एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हर जगह जितना आप टेस्टिंग करोगे उतना अच्छा है। जो सक्सेसफुल लोग अगर बाई चांस ये देख रहे हो, अ, तो क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो होता क्या है होता है कि ये सक्सेसफुल लोगों के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, आप करेक्ट। उसको और इम्प्रूव कर सकते हो ना, मतलब 100 रुपए से आप मान लेते 50 रुपए में लीड कॉस्ट ले आए, 50 से आप 40 में ला सकते हो, 10 में ला सकते हो, बिजनेस आपका और ग्रोथ ही करेगा, सेल्स ज्यादा बढ़ेगा, लीड का हो गया, अटेंडेंस का हो गया, ग्रोथ, हर जगह तो आपको ग्रोथ चाहिए ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया कि आपको हर अपने बिजनेस के लिए ए बी टेस्टिंग करना जरूरी है। ए बी टेस्टिंग क्या होता है कि दो चीज को लेना, आपको ए बी टेस्टिंग करते जाना है, तो हर वेरिएबल को आपको टेस्ट करना है, जैसे कि ऐड को कंसिस्टेंट, मतलब ठीक है आप समझ गए ना बस फीलिंग, तो वही वाला चीज है कि यही चीज है कि मतलब कुछ सेकंड थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है, यही चीज आपको करते ही रहना, ये फंडामेंटल्स है, जितना जल्दी आप सीख जाओगे उतना अच्छा है। मतलब मेरे मेंटर्स भी यही सब बोलते थे बट हम नहीं सीखते थे, अपने एक्सपीरियंस से ही सीखे। तो कोई कोई ऑडियंस होते भी है जो खुद से सीख जाते हैं, मतलब दूसरों से जल्दी सुन के सीख जाते हैं, तो अगर आप उसमें से है तो कॉन्ग्रेट्स, आप सीख लिए, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करिए। अगर खुद से चला रहे हो तो करिए, डेवलपर से चलवा रहे हो, मार्केटर से चल, जिसे भी चलवा रहे हो किसी और से, उनको बोलिए टेस्ट करके देगा आपके बिहाफ पे, आप उसको बोलिए कि अगले बार जैसे मनीष जी का वो इमेजेस चलाते हैं, तो उनका पे चेक टू प्रॉफिट है, मनी माइंडसेट का वेबिनार है, तो उनका अलग अलग हेडलाइन, मतलब सब कुछ सेम रहता है, हेडलाइन हम लोग इमेज पे अलग अलग लिख के चेक करते हैं, एक इमेज में लिखते हैं क्या क्या 3-4 हेडलाइन था मनीष जी आपके वेबिनार के लिए, फ्री वेबिनार के लिए। एक तो था कि चेंज योर मनी माइंडसेट, दूसरा था चेंज योर मनी माइंडसेट एंड एलिमिनेट योर मनी ब्लॉक्स। और हम्म, मेन हेडलाइन से ज्यादा उसका जो लैंग्वेज था, क्योंकि जो हमारे बाबा हैं जो हम्म, हमारे पेजेस को अचानक से ब्लॉक कर देते हैं, उसके लिए हमको बार बार वो हेडलाइन को ट्वीक करते रहना पड़ता है, एक वर्ड से फर्क पड़ता है, रजिस्टर नाउ से लेके साइन अप के बटन वाला टेक्स्ट से भी फर्क पड़ जाता है, नहीं हर चीज का। मैं उसका बात कर रहा था एक्चुअली, शायद वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया। इमेज के ऊपर जो लिखे थे ना आप 4-5 अट्रैक्ट हाँ करने के ओके। लिए हुक। हाँ, क्रिएटिव के ऊपर था, आर यू फीलिंग ब्रोक बाय द मिड ऑफ द मंथ और द एंड ऑफ द मंथ, डीलिंग विद मल्टीपल ईएमआईज, डू यू वांट टू हैव यू लॉस्ट मनी इन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारे अलग अलग पेन पॉइंट्स है जो मेरे टारगेट कस्टमर्स के, तो वो सबको यस, एक साथ मिलाकर कौन सा एड ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन से ऑडियंस के सेट में कौन सा लीड कॉस्ट कम आ रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करते रहना, तो मतलब है। यस, मतलब अलग अलग, मतलब हर कोई एक ही नाम से अट्रैक्ट नहीं होगा ना, हर कोई ईएमआई करेक्ट। प्रॉब्लम वाले से सफर नहीं करेगा। करेक्ट। मनीष जी बताए थे पिछले एपिसोड में, सॉरी,
कि वो 24 मनी ब्लॉक्स से वो बताते हैं कि कैसे उसे हटाना 24 मनी ब्लॉक्स। तो हर कुछ एक मनी ब्लॉक है। ये मान लेते, वो मैंने तो आपका प्रोग्राम अभी लिया नहीं है तो मुझे अंदर का आइडिया नहीं है, बट हाँ, जैसे मान लेते हैं डेब्ट एक इशू है लोगों के लिए, मल्टीपल ईएमआई इशू है, फीलिंग ब्रोक एट द एंड ऑफ द मंथ एक इशू है। तो सबके लिए अलग अलग इशू हो सकता है। मेरे लिए डेब्ट इशू नहीं हो सकता है मेरे लिए फीलिंग ब्रोक वाला इशू नहीं है, बट मेरे लिए कुछ और हो सकता है कि केयरलेसली स्पेंड कर रहे हो आप पैसा बहुत सारा। करेक्ट। कुछ भी इशू हो सकता है। तो एड का हम लोग क्यों टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग इमेज, ताकि अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट करे, कौन किस बात से रेजोनेट हो जाए। आज हम लोग 16 पॉइंट कवर करने वाले टोटल दोनों एपिसोड मिला के। तो 16 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट से हो सकता है आप कनेक्ट हो जाए। एक चीज का मल्टीपल एग्जांपल्स ले रहे, कौन से पॉइंट से, जैसे अभी उसका एग्जांपल ले रहे थे कि ऐड क्यों चलाना चाहिए, ऑर्गेनिक में क्यों सस्टेन नहीं कर सकते। तो उसका भी हम 4-5 एग्जांपल लिए, कौन से पॉइंट से कौन रेजोनेट कर जाए। तो आपको चेक करना है कि 4-5 पॉइंट चला के जिससे लोग ज्यादा रेजोनेट करते हैं, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। और फिर नया नया पॉइंट और खोजते रहिए, पैरेलली रुकना नहीं है। ये खाली एक एड इमेज का बात हुआ, उसी तरह से आपको हर जगह करना है। लिटरली ये सेकंड पॉइंट फिर से बन ही गया एक्चुअल वाला। तो यही चीज आपको हमेशा करते रहना है ना मनीष? बेसिकली पूरे बात को ऐसे एक स्टेटमेंट में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो हम्म। विद्या बालन ने कहा सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक ही चीज की जरूरत है, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। पंकज बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग को सुधारना है तो आपको एक ही चीज की जरूरत, आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग। हाँ। पंकज आपका एक ऐड ऐसा बनाएंगे हम, पहले विद्या बालन का डायलॉग फिर आपका डायलॉग। हाँ, मतलब एक्चुअली में ये सब अच्छा चल सकता है, ये सब क्रिएटिव चलता है, मतलब ऑफ कोर्स। कनेक्ट करके। मैं उनके साथ बनाना चाहूंगा वॉरेन बफेट वाला एग्जांपल, कि कुछ था ना उनका 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ये शायद आपको पता होगा, नेवर लूज मनी टाइप से। So there are 3 rules of money. The first rule of money is don't lose money. Second and third rule is don't forget rule number 1. हाँ हाँ, तो उनसे रेजोनेट करके बनाएंगे क्योंकि मनी रिलेटेड है ना वो। हाँ। तो मेरा भी अच्छा, आपको एंटरटेनमेंट रिलेटेड नहीं पसंद है, आपको विद्या बालन नहीं पसंद है क्या? क्या सारी चीजें छोड़कर हम ये कंट्रोवर्सी लेकर आएंगे नहीं, हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे, नहीं तो कोच आई क्या। नीड हेल्प में कि पंकज को विद्या बालन नहीं पसंद? नहीं नहीं, वो पसंद ना पसंद का बात नहीं, मेरे को वो ज्यादा पसंद है, मतलब क्योंकि वो मनी रिलेटेड है ना, उससे आपका भी फायदा है। अच्छा, मनी ठीक। रिलेटेड, मनी माइंडसेट। थैंक यू, हाँ थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया कि मेरा हाँ। नीच है। और कोचेस कोचिंग बिजनेस में आ रहे हैं क्योंकि उनको मनी कमाना है, सही बात है। इसलिए। जो भी एक पॉइंट आने वाला है जहां पे मैं बात करने वाला हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये तो हो ही है कवर। तो ये हमारा था 11th पॉइंट जिसको हम लोग एक ब्रेक कर एक करके चीज डिस्कस मुझे किया। याद आ रही है बस क्लोजिंग के लिए। जी। As a digital business owner, if your performance marketing is not working for you, हम्म। please understand the problem is not with performance marketing, because performance marketing is an industry in itself. It is working for millions and millions of dollars every day. Millions and millions of dollars are being spent on every social media platform throughout the world. So performance marketing is not working is a myth. What is not working is you don't know how to make performance marketing work for you. ट्रू। So find yourself a good agency, learn. I don't know what solution you're going to use. I know of a good performance marketing coach. I co-own a podcast with him. So you can just, reach out to him. You can sign up for यस। his webinar. You'll find the link to his webinar in the description. Do not forget to attend his webinar. Don't. I would very, very, very strongly recommend you to buy his program. That's all what I can do. यस। That's the best I can do to help you as a fellow coach. What you do यस। with your performance marketing and your business is your decision. But yeah, I do not agree to this point that performance marketing doesn't work. Performance marketing works. You don't know how to make performance marketing work for you. And I feel sorry for you if you choose not to do anything about it. और I और don't आपको feel और sorry for आपको you. नहीं आता, अगर किसी को ऑडियंस का बात कर रहे हैं, अगर उनको नहीं आता चलाने, तो इट्स फाइन, आना भी नहीं चाहिए आपको। मुझे हम्म। नहीं आता मनी माइंडसेट का चीज है, इट्स हाँ। ओके। या और फिर मुझे भी मुझे, नहीं आता था परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इसके लिए मैंने पंकज के साथ कोलैबोरेट किया है, मैं यस उनको अपना मेंटोर बना चुका हूँ, वी आर डूइंग बिजनेस टुगेदर। यस, मुझे हेल्थ का चीज नहीं आता है, मुझे बहुत सारा, मुझे नहीं आता ना हर टॉपिक। तो आप हाँ। भी अपने फील्ड में हेल्थ कोच हो, वेल्थ कोच हो, रिलेशनशिप कोच हो, सिंगिंग सिखाते हो, राइटिंग सिखाते हो, डांसिंग सिखाते हो, स्टॉक मार्केट, कुछ भी आप सिखा रहे हो, तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो ना। तो मैं फील्ड में उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो उसी तरह से आप, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे डांसिंग नहीं आता है, नहीं हूँ। तो आप डांस कोच हो, आप अकाउंटेंट कोच हो, अलग अलग है। तो उसी तरह से आप
एज अ कोच ये पॉइंट भी मैं कवर करता हूँ अपने वेबिनार्स में कि नॉट वेबिनार में, उसमें जो 7 डेज वाला था उसमें ये मैं कवर करता था कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको लगना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को मतलब कोचेस आते तो उनको गिल्ट फील होता है कि मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं आता है। तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं अपने ऐड पे ये भी लिखता हूँ कि दिस इज द नॉन टेक्निकल कोर्स। तो नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सीखने के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप जूम खोल के हमारा ये देख सकते हो, मतलब वेबिनार अटेंड कर सकते हो लोगों का, या फिर यूट्यूब में ये हम लोग का ओपन करके चला रहे हो मोबाइल से, तो आप बाकी चीज भी आप सीख सकते हो। तो आपको एफर्ट लगाना है। और नहीं सीखने का मन नहीं लगता कि नहीं ये मेरे बिजनेस रिलेटेड है ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आउटसोर्स करके खत्म करो उसको। लेकिन ये नहीं बोलिए कि काम ही नहीं करता, मुझे ट्राई नहीं करना है। आप ही का नुकसान हो, किसी और का नुकसान नहीं है। And as a fellow coach, my recommendation or suggestion to you would be, please learn how to take care of performance marketing, because even if you go to an agency tomorrow, how do you know whatever they are recommending is good for you or not? How do you know if they are charging you a good amount and they are running your ads well? Because learning how to run your ads is just one time knowledge which is never going to go fail. That's literally exactly the same thing that I am doing. I have learned performance marketing. So when I sit with Pankaj, he only enhances my knowledge better. Yes. It's not that I look at him as if he's playing a video game and I'm trying to understand what exactly is happening in front of my eyes. You need to know every aspect of your business. It's perfect. He is a gem of a person. He's telling you, you know what, it is perfectly okay if you don't know how to run performance marketing. It's perfectly okay, but you must know. If you are in this business for the long run, if you actually want to run a profitable business, if you want to be in control of every aspect of your business, which is absolutely important, you must learn how to use performance marketing to your advantage. यस, वरना फिर वापस से वही हो जाएगा कि अगर आपको नहीं आता है तो आप दूसरे एजेंसी के पास जाओगे तो फिर वो कुछ बोलेगा, या फिर कुछ रीजन से काम नहीं कर रहा होगा तो आप बोलोगे फिर से नहीं काम करता ये चीज, देखो हम ट्राई किए, फिर से ट्राई कर लिए, फिर से नहीं काम किया। एटलीस्ट नहीं काम करना इट्स नॉर्मल, 1 महीना 2 महीना नहीं काम कर सकता, इट्स फाइन। बट आपको रीजन पता रहेगा कि इस बार क्यों फेल हुआ, अगले बार क्यों फेल हुआ। उस फेलियर को हटाते जाओगे। लिमिटेड चीज ही होता है बिजनेस में, लीड्स लाना, अटेंडेंस, अगर शॉर्ट में समराइज करें, लीड्स लाना, अटेंडेंस लाना और सेल्स करना वेबिनार का। अगर ये 3 मेन टॉपिक हो गया वेबिनार सेल्स के लिए, तो एक एक करके फिक्स करते जाइए। फर्स्ट मंथ में आप लीड का क्वालिटी फिक्स कर लीजिए, लीड का प्रॉब्लम खत्म हो गया, वो लोग अटेंड करेगा खुद ब खुद। व्हाट्सएप ऑटोमेशन वगैरह भेजिए ताकि ज्यादा रिमाइंडर भेजने से ज्यादा लोग अटेंड करेगा। अटेंड कर रहा है तो आप वेबिनार मतलब अटेंड कर रहा है हर वीक, फिर भी बाइंड नहीं हो रहा है, तो अब पहला 2 चीज को मत फिक्स करिए। अब जाके थर्ड चीज को फिक्स करिए, वेबिनार का स्क्रिप्ट को फिक्स करिए, वेबिनार का ऑफर को फिक्स करिए, वेबिनार पे काम करिए। अब मार्केटर को भूल जाइए कि लीड्स आ रहा नहीं आ रहा है, लीड्स आपके वेबिनार पे आ रहे हैं, लोग अटेंड कर रहे हैं। अब आपको स्क्रिप्ट का काम है कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो यही चीज है, तो इसको हम लोग डाल देंगे थर्ड पॉइंट में, एबी टेस्टिंग का थर्ड पॉइंट, कि ये चीज कंप्लीट करना है। Correct. तो I सब hope कनेक्टेड रहता है। I hope by now you've clearly understood the importance of performance marketing. The reason why we actually chose to do another part 2 of this entire episode is because this one point in itself, I wanted to get proper justice done to, because performance marketing is inevitable in your business. So we just wanted to do good justice to the point, and I hope it has added value to you. यस, नहीं तो उसमें हम सोच ही रहे थे कि अरे मनीष जी वो हम पॉइंट बता ही रहे थे, फिर हम लोग पॉज कर दिए थे। हाँ 5 पॉइंट हो गया, अब 10 पॉइंट बचा हुआ तो जल्दी जल्दी निपटाते 10 पॉइंट को। तो ये तो फिर शॉर्ट्स बन जाता है एक 30 सेकेंड्स का। हाँ, वो बाकी के सारे पॉइंट्स हम शॉर्ट्स में उड़ा देते हैं, वो जो हमें करना नहीं है, वो वी आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पॉडकास्ट। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट पंकज। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि फ्री वेबिनार चलाए, पेड वेबिनार चलाए, 5 डेज का वर्कशॉप चलाए, वीएसएल चलाए, वेबिनार करे, ब्रश करे नहीं करे, बस बस पेंटिंग करे बस नहीं करे। पेंटिंग पेंटिंग अच्छा है, मतलब मेरे को लगा हाँ ब्रश के नहीं, आगे आप कौन से डायरेक्शन में जाने वाले थे, मुझे बस रोकना था आपको। इसीलिए तो हम अटक गए थे ना उस समय, तो हाँ फिर इधर उधर खोज रहे थे और बेटर क्या बोल सकते हैं। हाँ, हाँ तो so the मतलब idea, हाँ हाँ बताइए बताइए। वही, मतलब सोचना नहीं है कि ये करे वो करे ये करे। मतलब मेरा शॉर्ट तो मतलब ऐसे तो मैं बोलता हूँ कि अभी हम लोग बोल रहे बहुत दिन से वेबिनार का बात कर रहे हैं, बट कुछ भी आप कर लीजिए, मेरे तरफ से तो एक ही चीज रहता है, कुछ भी करिए चालू करिए और उसको रिफाइन करते रहिए इवेंचुअली। बाकी मनीष जी आपको डिटेल्स में बताएंगे, प्लीज So मनीष जी। basically, one more reason why coaches are failing and dropping like flies is because they can't decide the format in which they want to do the sale. We've already discussed in the earlier episode that first of all, they are not confident with sales.
they don't want to learn sales, or they still don't know how to get confident and have the conviction in their product to sell. But even when you know, if you have the conviction to sell, that is not enough. Conviction is not enough. The actual process of converting a lead into a customer is just as important. And when we come to that, I'll tell you, people are going crazy trying to understand which model works. We've covered this very extensively in our earlier episodes, where we've clearly told you every model works. Every. Particularly, Pankaj and I are favorable towards the webinar model. Very quickly, I'll tell you why. Because you save time. You can sell in a structured manner in 90 minutes. You can reach out to anywhere between 10 to 10,000 people, depending on how many leads do you have and how well are you nurturing your leads. And the idea is simple. When you do webinars, you are entirely in control of your sales process and you're not investing too much time in it. Look at it from this point of view. Tim Cook and Apple creates a signature product, iPhone, and they sell that iPhone in a webinar sort of a model. They tell everybody to attend that live session. And in that live session, they tell everything that there is to know about the phone. What is the processor? What is the new camera? What is the new screen like? What is the new battery life like? What are the new colors? What is that? That is literally a webinar model. That is my way of explaining why webinar works. If it is working for Apple, you can't tell me that it will not work for your business. Okay. Yes. But what other models exist? There's a free webinar, which both Pankaj and I are strong proponents of. Second, paid webinar. You'll end up paying extremely high fees for your leads, and your list will not grow tremendously. Your brand will not grow tremendously. So that is why we stay away from paid webinars. But obviously, paid webinars works for multiple people. So if you feel paid webinar works for you, please go and get yourself a coach who can help you master paid webinars if you are not sure about how to make it work. Then there is a 3-day workshop, a 2-day workshop, a 5-day workshop, a 7-day workshop, a 15-day workshop. Doesn't matter. There's another model where you don't sell in a webinar, but you sell in a workshop model. What happens? Why do people do that? Is because this gives you more time with the audience. You spend more time with the audience. You end up giving them a lot of information. You end up giving them structured information. They understand whether they like your teaching and coaching pattern or not. But again, what are the negatives of a 3-day, 5-day workshop? Very time consuming, very energy draining. Your leads will keep dropping day by day. You'll end up teaching a lot, as a result of which what will happen is people will end up getting so much information that they will not even feel the need to sign up for a paid program. This is again something that we've covered extensively in our 11 reasons why webinar fail episode. So go and watch that episode to get more perspective on this. One more model, which is yet another, which is my second model that I'm going to go to once my webinar model is cracked, which is called the VSL model, which is a video sales model, video sales letter model. VSL is video sales letter. Now, what is a video sales letter? Imagine a VSL to be a pre-recorded webinar where instead of you calling people live, your VSL is working 24/7. So the way people come to a landing page and they sign up for a webinar, they come to your landing page and they start seeing a video ad. This video sales letter, what is the difference between a video sales letter and a video ad? An ad runs for anywhere between 1 to 3 minutes or 30 seconds to 3 minutes. A video sales letter can go anywhere between 10 minutes to 30 minutes. ठीक है, आप explain करिए, मैं एक मिनट break लेता हूँ. जरूर. So what happens in that 3 minutes to 30 minutes is you talk about your product. You talk about your entire journey. You talk about why are you selling a product A and what are the features of your product, and basically the entire webinar script in a very short, condensed manner. And in that condensed webinar, in a video, you will give them all the information that you have. And in the 30 minutes, you'll also make an offer which will make it possible for your customer to watch your entire VSL and buy your product. So now, what is the difference between a webinar and a VSL? One, when your brand is new, people need more time with you. People need to understand what are you going to do step by step. That is why you do a webinar. Once your brand is well established, once you have learned
what works for your customers. Once you have a bigger community, you will then end up converting your webinar into a video sales letter, and it will work in a similar manner. People will see your ad, they will come to your landing page, and on that landing page, they'll see a VSL. At the end of VSL, you'll make them an offer and they'll choose and decide whether they want to be your customer or not. So is VSL a good model? Yes, but who will the VSL model work for? VSL model will work for established coaches. VSL model will work for coaches who have a very strong existing funnel. VSL also works for people who are selling a low ticket product. VSL also works for people who are selling a very low budget single training program. It's a tester model. So VSL works. As I said, all models work. Yes. Free webinars work, paid webinars work, 5-day workshop works, VSL works. It is upon you to understand what is best suiting for your personality, your product, your business, your brand, and then make it work for your business. Keep working. I'll give you some perspective. I have been doing my webinar for about a month now, and I have done about 7-8 webinars. Have I got tremendous success in all my webinars? No. But have I got success in my webinars? Yes, I have started building my community, which means that my webinars are working. Can they improve? Yes. What do I need to do? As Pankaj said, I need to optimize my ads. I need to optimize my landing page. I need to optimize my conversion experience. I need to connect with my audience, remind them to come to my webinar. Yes. I need to focus on those things. Because of which, I'm telling you, every model works. Pankaj and I choose to talk about webinar model, and I am telling you, eventually I'm going to go to the VSL model, but every model works. Just figure out what's your model and make it work for your business. Yes, बिल्कुल. तो होता क्या है कि I'll just also share my perspective here. Yes, फ्री please. वेबिनार इसलिए अच्छा लगता है मुझे क्योंकि वो फ्री रहता है. You will get to build a bigger list. और लोग फटाफट आपको अप्रोच कर सकते हैं वर्सेस चाहे 99 लो चाहे 499. इट इज लाइक उनको थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगता है. बट क्या पेड वेबिनार काम नहीं करता था. मैं खुद करता था इसको 4 इयर्स पहले. मेरे क्लाइंट सारे यही करते थे. दे वर हैप्पी. बट मैंने उनको अभी फ्री वेबिनार में शिफ्ट कर दिया फॉर रीजंस कि उनका लिस्ट बड़ा हो, उनका ब्रांड बड़ा हो. बट क्या अगर आज कोई आता है मेरे पास क्लाइंट तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा फ्री वेबिनार ही. बट अगर कोई बोलता है कि पेड वेबिनार पे ही चलाना है, वो चलेगा नहीं चलेगा ऐसा पूछेगा हमसे तो चलता है. ऐसा नहीं कि नहीं चलता है. उसका बस खाली ये डिसएडवांटेज होता है कि आप एक क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए शुरू में ही मतलब 100 रुपए का क्लाइंट है, अगर आपको चार्ज कर रहे हो तो 500 600 1000 रुपए तक आप शुरू में ही पे कर दे रहे हो. करेक्ट. तो आप 100 क्लाइंट को अगर लेकर आ रहे हो, 100 लीड्स ला रहे हो अपने वेबिनार पे, तो आप 1 लाख रुपए पे करके एडवांस में बैठे हुए हो. तो ये नहीं है कि आपका नुकसान हो गया. 1 लाख बैठे हुए तो आप उसको अपसेल कर सकते हो. बाद में अपसेल कर दोगे. आप मान लेते हैं 20-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपसेल कर रहे हो, 100 में से 10 लोग भी 20-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट ले लिया. ऑफ कोर्स प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से होना चाहिए. तो 10 लोग भी ले लिया तो 2 लाख का आपका सेल हो गया. 1 लाख इन्वेस्ट किया था एड में, तो यू आर स्टिल प्रॉफिटेबल. बट उसमें थोड़ा सा आपको वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होना चाहिए कि 100 लोग आएगा तुम 10 तो बेच ही देंगे. वरना अगर 100 में से आप, और क्योंकि और भी एड कॉस्ट होता है, जीएसटी होता है, बहुत सारी चीज जाता है. तो जितना आसानी से हम बताए 2x ROI हो गया तो उतना आसानी से भी नहीं होता है. आपको मे बी 50,000 का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, 10 लोगों को 5 लाख का सेल करना पड़ेगा, तब जाके शायद थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हो. तो होता है प्रॉफिटेबल, बट उसमें थोड़ा अलग मैथ्स काम करता है. मे बी इट माइट नॉट बी सुटेबल फॉर यू टू स्टार्ट विथ. ठीक है, आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो वर्सेस आप फ्री एड में मे बी 10-12 हजार रुपए लगाए, 30-40-50 लोग आ रहे हैं, बट ठीक है चलो चालू हो रहा है कुछ ना कुछ. आप 2 ही प्रोग्राम बेच दो उसको 5-5 हजार रुपए का तो हो जा रहा है. मतलब स्टार्टिंग के लिए अच्छा है. 5 days वर्कशॉप. यस बोलिए. And credit where it is due, this 5-day workshop was started by a very prominent coach. But when they had started this model, it was extremely profitable. I need to clarify this. There was a time when for a 100 rupee lead, you were spending only about 80 rupees. तो आप lead पे भी पैसा कमा रहे थे. 10 rupees. क्या बोलूं मैं अभी, बताओ. तो वर्कशॉप इंसान प्रॉफिटेबल ले होता रहा है था. 100 रुपया, 100 रुपए में एक वर्कशॉप अनलिमिटेड डालो, सब पूरे स्केलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. So वो था. तो किसी जमाने में ये इतना प्रॉफिटेबल था कि 100 रुपए की लीड के लिए आपको सिर्फ 10 रुपया स्पेंड करना पड़ रहा था. बट एज आई से, द गोल्डन डेज विल नॉट लास्ट फॉर एवर. आज वही 100 रुपए की लीड के लिए लोग 1000 रुपया स्पेंड कर रहे हैं.
तो आप वो ग्रोथ देखिए। एंड यस हाँ, यस, और ये मतलब सेम सही है। चीज प्री वेबिनार्स के साथ भी होने वाली है 2023 में, मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म तो start making your organic content also. Please start building your brand. Please build a good, profitable, genuine coaching business, and there is nothing stopping you. But if you are going to mess up on any of these 11, 16 points or anything else that we've spoken earlier, it was nice having you in the coaching industry. Unfortunately, you're not a coach anymore. And yeah, and I'm going to be direct about this because this industry जितना जल्दी ये बढ़ रही है ना, और जितना जल्दी ये लोगों को अपने मतलब the more and more people are getting attracted to this, people are going to lose out just as fast. People यस say stock market is a gamble. I'm telling you, by that perspective, coaching is a much bigger gamble. हाँ, मतलब ये पॉइंट से मैं थोड़ा बहुत इस बार सिंक कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा ये सब मेहनत करने का हिसाब किताब जो है, यहाँ पे बैठ के एक ही दिन में 2-2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, अपना अपना बदनामी करवा रहे हैं कि मेरा भी ये इशू है, वो इशू है, तारीफ करने की जगह। तो मकसद हम लोग का यही होता है कि जिनको एक्चुअल में ये बिजनेस चलाना है, जिनको एक्चुअल में जरूरत है, वो सीखे। यहाँ Correct. प्रवचन देने के लिए थोड़ी हम बैठे हुए हैं कि नहीं बस किसी को भी कुछ भी सिखाओ। ये उनके लिए कि जो एक्चुअल में चाह रहे हैं कि आई वांट टू स्टार्ट, आई वांट टू लर्न, कहीं अटक रखे, तब हम उनको बता रहे कि फॉर एग्जांपल आज का टॉपिक है व्हाई कोचेस फेल। वो परेशान है कि नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब 100 लोग देख रहा है, 100 में से 2-3 लोग को भी हेल्प मिल गया तो ठीक है। लेकिन ये अगर उस टाइप का अगर आप लोग हो कि नहीं मेरी जॉब चली गई है तो मैं इसको लेना चाहूंगा, डेफिनेटली लीजिए, कोचिंग करिए, बहुत अच्छी बात है, आपका 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है तो आप उसको सिखाइए। लेकिन वैसा मत करिए कि सोच के मत आइए कि जॉब चल गई है, 3 महीना बैठे हुए हम, जब तक नहीं मिलता है तो कोचिंग बिजनेस चालू कर लेते हैं। तो आपका भी फायदा नहीं है, मेरा तो कुछ नुकसान है ही नहीं, क्योंकि मैं तो फ्री कंटेंट बना रहा हूँ आपसे, ना ही कुछ ले रहा हूँ ना ही कुछ दे रहा हूँ। और रहा, आप गलती से कोई बोल देगा अगर कमेंट में आके कि आप तो वेबिनार का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, तो मैं बता देता हूँ कि इस वेबिनार के एडवर्टाइजमेंट से में भी 100 व्यू है, 100 में से 2-3 लोग रजिस्टर करेंगे, उसमें से आधा 1% शो अप होगा। तो मेरा तो ऑलरेडी है, 100 लोग डेली रजिस्टर करता है एड से, क्योंकि आप भूलो मत हम भी एड चलाते हैं खुद का। तो ये चीज है, मतलब फॉलो करिए सब कुछ, और लॉन्ग टर्म का विजन है तभी करिए, वरना आपके Correct. लिए भी टाइम वेस्ट है आपका। एक्चुअल में जो मनीषी बोल रहे गैम्बल है, वो गैम्बल ही हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा हम तो इसको क्यों हायर करें, ये हायर करेंगे तो इसको इतना पैसा ले लेगा, इससे बढ़िया हम 1 लाख रुपए हम डायरेक्ट एड में ना डाल दे, 1 लाख रुपए से हो जाएगा। स्टॉक मार्केट से भी जल्दी पैसे जाएगा आपका। तो ये वही कहानी है। हाँ, एग्जाम्पल मतलब ये हो गया, मतलब सॉरी आप कहानी को रोक के हाँ, रखिएगा। हाँ, हाँ, बेसिकली होता क्या है उसमें कि मैं स्टॉक मार्केट से भी जल्दी जाएगा ना, हाँ, कि आपको दिखेगा कि अरे वाह 1000 लीड आ गए, देखो बोल रहे थे ना, ये तो पंकज जैसे बकवास करते रहता है, 1000 लीड आ गया मेरे पास। तो वेबिनार करने जाओगे, 10 लोग आया, 1000 में से खत्म हो गया, पता क्यों पता ही नहीं चल पा रहा है कि हुआ क्या। आप फिर बाद में इधर उधर आप खोज रहे हो कि 1000 में से लोग आ ही नहीं रहे। हो सकता है आपका ऑडियंस गलत हो, या फिर वो तो आप एपिसोड देख लोगे मेरा वो वाला ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन वाला, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। बट वही होता है कि आपको लगेगा ये बहुत लीड्स आ रहे हैं, बिजनेस हो रहा है और पैसा डालो, बट नहीं हो रहा है। अटेंडेंस आ गया तो हो सकता है सेल नहीं हो रहा है। लोग मतलब मैं कभी कभी बता रहा था ना स्टार्टिंग में, कौन से एपिसोड में पता नहीं, कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी कि इसका वेबिनार चल क्यों नहीं रहा है, इस क्लाइंट का सब कुछ परफेक्ट है, चल क्यों नहीं रहा है। तो चलता कभी कभी किसी क्लाइंट का नहीं है, क्योंकि कुछ छोटा सा कहीं पे लूप होल रह जाता है। तो इसलिए जब भी हम लोग आपको भी सजेस्ट करेंगे कि चालू कर रहे हो, हर कोई तो अगर सीरियसली ले रहे हो उसको, तो थोड़े बजट से चालू करो स्टार्टिंग में। इतना बजट जो आप लूज करने के लिए रेडी हो, जो स्टॉक मार्केट में लोग बोलते हैं कि जो लूज करने के लिए रेडी हो, बोला मैं भी वही कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि कोई ऐसा बजट लेके आओ जिससे आप कम से कम 3 मंथ यानी 12 वीक तक कम से कम सस्टेन कर सको जीरो सेल के साथ। क्योंकि हर वीक आप कुछ ना कुछ फिक्स करोगे। पहला वीक हो सकता है आपका ऐड डिसअप्रूव हो गया, या फिर ऐड चल गया तो उधर पैसा खत्म हो गया, लीड आया ही नहीं, टेक्निकल फॉल्ट रह गया था लैंडिंग पेज पे, या फिर सब कुछ चल रहा है तो कन्वर्ट किट में डेटा स्टोर नहीं हुआ, या फिर डेटा स्टोर हो रहा है तो फिर जाके लोग आ नहीं रहे, अटेंडेंस नहीं काम किया, हर वीक कुछ ना कुछ हो रहा है। फर्स्ट वीक से भी चलता है बहुत लोगों का वेबिनार, मेरे चले, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, नेगेटिव नहीं है, बट आई एम मोर ऑन द कंजर्वेटिव साइड कि आप correct. चला के थोड़ा पैसा बचा के चलो, ताकि अगर आप 2 लाख रुपए का बजट लेकर आ रहे तो मंथ 1 में 2 लाख रुपए मत खर्चा करो, 2 लाख को इवेंचुअली स्प्रेड करो, 10-10 हजार रुपए पर वीक डालिए वेबिनार पे, ताकि आप 20 वीक तक वेबिनार कर सके विदाउट सेल्स। और ऐसा Correct. हो ही नहीं सकता कि आप
10 वीक तक कर ली और सेल्स नहीं हो, 5 6 7 वेबिनार करते करते ही आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है। फिर कम सेल हो सकता होगा, एक दो, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। अनलिमिटेड आप करोगे तो अनलिमिटेड सेल होता ही है, उसका कोई चांस ही नहीं कि नहीं बिके प्रोडक्ट। खराब से खराब प्रोडक्ट भी बिक जाता है, हालांकि बेचना नहीं चाहिए वो अलग बात है। तो ये टोटल है। और एक सिंपल चीज समझ लो, वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट दीज टू एपिसोड्स टू स्केयर पीपल ऑफ, हम्म। बट if the two of us in a matter of 10 minutes of discussion can come up with 16 points how coaches fail, can you even imagine how slippery this entire industry is? It looks very glamorous because it is. It's very easy to get tempted by seeing people's social media content and then seeing how a coach is creating lakhs of revenue in every webinar. But to reach there, you have to tackle these 16 demons. यस। एंड उसी का अगर पॉजिटिव वेरिएशन हम बताए सेम चीज का, तो पॉजिटिव वेरिएशन ये कि हम लोग पॉडकास्ट कर ही इसके लिए रहे, नेगेटिव भगाने के लिए नहीं कर रहे। हम लोग आपको लाने के लिए कर रहे, वेलकम कर रहे हैं। बट आप लोग इसको समझ कर आइए ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें। हम लोग तो चाहते ही है, मतलब जो सिद्धार्थ बोलते हैं उनका एक सिस्टम है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मेस्ड अप हो रखा था, ये हो रखा वो हो रखा। तो हम लोग का नजरिए से मुझे पहले लगता था कि हाँ बात तो सही है कि मुझे ये सब पढ़ना ही क्यों, जब इंजीनियरिंग में इतने सब्जेक्ट पढ़ने ही क्यों जब ये सब काम नहीं आता है। फिजिक्स क्यों पढ़ता है जब मेरा अप्लाई ही नहीं हो रहा है। हम कौन सा खाना खाते समय तोल के खाते हैं, बट हाँ आजकल कभी कभी डाइटिंग में तोल के खा रहे हैं अलग बात है। बट सिर्फ वेट का किलोग्राम वगैरह बता देता है ना, उतना क्यों बाकी चीज बता रहा है। तो अब शायद एजुकेशन सिस्टम भी बहुत हद तक शायद मॉडिफाई हो गया कि इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ कुछ अपना अपना ले सकता है लोग। फिर उनका कॉन्सेप्ट ये था सिद्धार्थ का कि हम लोग मिनी कोचेस बना रहे हैं, जो एग्जैक्टली आइडियल होना चाहिए कि अगर उसको सिर्फ अपना वेट नाप नाप के खाना है आइडियल, तो डाइट कोच के पास चले जाओ। कुछ और करना है तो सिर्फ उसके पास चले जाओ। मतलब मुझे तो लगता है कि वो भी जरूरी नहीं है कि आपको 11 12 भी करना है, मतलब करना चाहिए वो अपना ऑप्शनल है। बट आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो सीखना चाह रहे हो आप उस कोच से सीख सकते हो, पर्टिकुलरली उनका एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। आपको उसके अराउंड पूरा का पूरा 5 साल 10 साल देने का जरूरत नहीं है। उससे बढ़िया आप 10 तो कोच पकड़ के 10 चीज सीख लो अपने Correct. बिजनेस के लिए, बिजनेस कोच बनना है तो यही सब Moving की चीज on, है। moving on, we still have 1, 2, 3, 4 points to go. So हम्म। let's talk about the next point why coaches fail, which is coaches don't have a good value or value ladder or a upsell offer. यस। Very quickly, let me just tell you what is a value ladder. So when you ideally enter into the coaching world or when you become a coach, I would very strongly recommend for you to have an entry level product where you give your audience some transformation, some growth, some benefit, and based on that you tell them to buy more knowledge from you, buy more offers from you, buy more courses from you. Very simply, if you the freemium model or a model where you buy a shaving razor once and then you have to keep buying blades forever, something like that. You sell them a level 1 program where you give them some value, good value, and then you tell them, see, if you've given me 10 rupees, I've given you 100 rupees of value. Now give me 30 rupees and I'll give you 300 rupees of value. Give them more, keep getting them into more and more programs. And why does this work is again something that we've spoken in the past episodes. And considering you've watched this episode till this point, I'm sure you are already in the coaching industry and you understand what is a value ladder and what is an upsell. So yeah, the reason why we've seen so many coaches fail is because they just get stuck on level 1 and they don't have the confidence or the conviction to start selling level 2 or level 3. So yeah, if you don't have a level 1, level 2 or a level 3, there's a very good probability that you are walking towards failure. So stop yourself from doing that and immediately start building a level 2 or a level 3 for your own community. यस। एंड इसका क्विकली मैं एक वो रीजन दे देता हूँ। बेसिकली अगर लेवल 1 मान लेते हैं आपका 5 10 हज़ार रुपए का है, Correct. तो अभी आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं जनरली लोग स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में हम इनको सेल करके अब वो कर लेते हैं कि अगर 5 हज़ार का प्रोडक्ट है तो आप सोचोगे कि 2 हज़ार का कॉस्ट आ रहा है बेचने का। एवरेज करके वेबिनार पे लोग आ रहे हैं, इतने लोग अटेंड कर रहे हैं, फिर इतना बाय कर रहा है। तो एक पर्सन को बेचने का कॉस्ट आपको मान लेते हैं 2,500 के आसपास पड़ रहा है। तो 5 हज़ार का प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रॉफिटेबल है। बट ऑन द अदर हैंड जिनके पास लेवल 2 लेवल 3 है वो बोलेंगे हम तो 5 हज़ार देने को रेडी है। पाँच, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, वो लोग वही करेंगे, ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा पर लीड कॉस्ट ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
तो अगर वो 5,000 दे रहे एक मतलब लीड का कॉस्ट वो ज्यादा भी पे कर पा रहे, ज्यादा अफोर्ड कर पा रहे, कि आप 50 रुपए में लीड ला रहे थे, 100 लीड आया, तो 5,000 रुपये खर्चा किए और 5,000 रुपये में आप 10,000 का प्रोग्राम बेचे, और वही वो पूरा का पूरा ब्रेक इवन करवाने के लिए रेडी कि मुझे लेवल 1 में प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, वो चाह रहे कि लेवल 2 में भी मुझे प्रॉफिट मिल जाए तो आई एम हैप्पी। यहाँ 5,000 का प्रोग्राम बेच रहे हो, लेवल 2 में 50,000 का प्रोग्राम बेच रहे हैं, तो उनका 50,000 जो लेवल 2 पे आ रहा है वो तो प्योर प्रॉफिट है ना उनका। तो यहाँ पे करेक्ट वो नुकसान भी करा ले तब भी लेवल 2 में प्योर प्रॉफिट मिल जाएगा। और करेक्ट। लेवल 2 में इनफैक्ट ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसका बात कर लेता हूँ कि 5,000 रुपए का प्रोग्राम बेच कर आप 5 लाख कमा रहे हो, तो 5 लाख डिवाइडेड कितना हो गया, 5,000 कितना हो गया मनीष जी, 5 लाख डिवाइडेड और कस्टमर 100 कस्टमर आया, तो 100 कस्टमर आपके लेवल 1 पे आए और समहाउ मान लेते हैं आप 1.5-2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा भी लीजिए लेवल 1 में, चलो ठीक है, लोग कमाते भी है, मेरे क्लाइंट्स कमा रहे 2x 3x कर रहे हैं, बट आई थिंक आप ब्रेक इवन भी कर लो या फिर 1-1.5 लाख जो भी कर रहे हो, ब्रेक इवन कर रहे हो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहे हो, जो भी सेम बात है। अब सेल नहीं हुआ तो अब 1 लाख प्रॉफिट किए, खुश हो गए, 2 लाख कर लिए, 3 लाख कर लिए, 2x 3x कर लिया, 2 लाख प्रॉफिट ले गए घर, खुश है। लेकिन अगर आपके पास अपसेल होता तो 100 में से सिर्फ 10 लोग भी आपका 50-50 हजार का प्रोडक्ट ले लेता, तो वापस से 5 लाख का रेवेन्यू हो गया। करेक्ट। वो रेवेन्यू नहीं था इस बार, वो था इस बार प्रॉफिट। और वो इमीडिएटली आपके पूरे बैलेंस शीट को बदल देता है। हम्म कहाँ लाख रुपए का रेवेन्यू और कहाँ 5 लाख रुपए का रेवेन्यू, कहाँ लाख रुपए का रेवेन्यू 100 कस्टमर्स के साथ और कहाँ 5 लाख रुपए का रेवेन्यू सिर्फ 10 कस्टमर्स के साथ या 20 कस्टमर्स के साथ। हाँ, और मनीष जी फिर अब इसमें सोच रहे होंगे कि 10 में से अगर 2 लोग अगर मेरा वो 2-2 लाख लाख रुपए का रुपए भी वाला। हाँ, हाँ जरूर तो सोचूंगा, मैं क्यों नहीं सोचूंगा, और दो क्यों सोचूंगा, मैं तो 5 सोचूंगा। हाँ, मतलब ठीक है, 5 लेके हम मान लेते 20% लेते हैं, 2 ही लोग 2-2 लाख, क्योंकि 50,000 का बेचे थे ना स्टार्टिंग में हम लोग सेकंड लाख का लेवल पता। पे, नहीं सेकंड पे 50 का बेचे, तो इस बार हाँ 2 लाख का करेक्ट बेच देते हैं। करेक्ट करेक्ट, हाँ 2 लाख का बेचेंगे तो हाँ ठीक है, चलेगा 2 लाख। हाँ, दो। तब 2 आ गया, तो फिर से 4 लाख एडिशनल आ गया। अब उसमें से एक और फैन बन गया आपका, हो सकता है आज नहीं, ये प्रोसेस करते करते 2 साल लग गया आपका हाँ टोटल, करेक्ट। 3 साल लग गया, बट तीसरी साल तक वो 10 लाख का प्रोडक्ट भी ले सकता है आपसे। 100% लेगा, 100%। हाँ, तो अब सोच लो, कहाँ 1 लाख, कहाँ कितना लाख। हम्म। करेक्ट। तो ये पंकज का ये मीम बन सकता है, कहाँ कितना लाख। सही बात है। हाँ। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि इसका मीम ना बनाए, वरना हम आप पे केस कर देंगे। क्या केस करोगे, खुशी खुशी मैं बांटूंगा हर जगह पे। नहीं, नहीं बनाना है मीम, परमिशन लेके बनाना। कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ। मूविंग ऑन। ठीक है, तो 14। हाँ जी, बताइए, कुछ बोल रहे हैं। 14 प्रोडक्ट, 14 पॉइंट तो आप ही का पॉइंट है, मतलब आप बता सकते हो। मतलब 14 पॉइंट तो मतलब मैं ये सबसे पहले रखना चाहता था, लेकिन फिर आप लोग है ना यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, और इसके ऊपर ज्यादा बात करने ऐसा है भी नहीं। 14 पॉइंटर्स, you are definitely bound to fail if you're selling a bad product. We've mentioned this fleetingly multiple times. Do not even try to get into this industry if you're selling a bad product, because sooner than later, first of all, you are spoiling the name of the entire industry, which means directly or indirectly, you are making Pankaj and me your enemy. You're getting into our bad books, because we are never going to appreciate हम्म coaches who are getting into this industry and selling bad products. And if you're anyway selling bad products, you're not even going to make you our enemy, because the market itself is going to kick you out. हम्म So yeah, if you are selling a bad product, you're bound to fail. हाँ, इसी के साथ ये 14 पॉइंट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं, आप समझ लो मतलब, क्योंकि मेरे पास भी इसका अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। अच्छा है ना। मैं किसी के साथ काम ही नहीं करता हूँ। मतलब मेरे साथ अगर स्टूडेंट्स आते हैं, इसका भी मैं स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन कि मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और वो बोलते कि आपका कोचिंग सीखकर मैं वो कर सकता हूँ क्या, कि लोगों को सिखा सकता हूँ क्या, तो मैं उनको नहीं लेता हूँ, कि आप लेना मेरे नहीं से चाहिए। सीखकर आप इम्प्लीमेंट करो अपने लिए कुछ, तब जाकर सिखाना चालू करो ना। वो स्टार्टिंग से ही बोलते हैं कि मैं डे 1 से ये करूंगा कि लैंडिंग पेज बनाऊंगा, हाउ टू बिकम अ कोच, हाउ टू रन एड्स। अच्छा, ठीक है। तो यही चीज है। Bad product is equals to bad coach is equals to a bad person. That's what I'll say. हम्म तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कितना कितना इजीली तुमने वो इतने भारी कमेंट को ऐसे इग्नोर मार लिया ना। आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे वो समझ में कम आया। मतलब मुझे लगा कि बैड प्रोडक्ट के बारे में तो बात ही नहीं करना है, क्यों क्यों ये खराब प्रोडक्ट कोच क्यों इज है। इक्वल्स टू खराब कोच इज इक्वल्स टू खराब इंसान। एक खराब इंसान ही खराब प्रोडक्ट बेचने की बात करेगा। मतलब ठीक है, मतलब
हम तो हर चीज में पॉजिटिव खोजते हैं ना, इसमें हाँ पॉजिटिव यही खोज रहे हैं कि अगर कोई इंसान मतलब अगर कोई ऑफेंड हो रहा है इस टॉपिक को सुन के, तो वो तब ऑफेंड हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका प्रोडक्ट या तो मजबूरी में खराब है या गलती से उसको पता नहीं था खराब है। तो अगर ये दोनों केस में है, हाँ अगर ये दोनों केस में है, तो आप लोग फ्री में लोगों को पढ़ाइए, फ्री में लोगों को कोचिंग दीजिए और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लीजिए। इट्स फाइन, आप कर सकते हो। प्लीज, कांग्रेट्स, परफेक्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ मूविंग ऑन, 15th पॉइंट। हाँ, इस पे भी तो मनीष जी बोल सकते हैं क्योंकि ये डांटने वाला टॉपिक है। डांटने वाला टॉपिक है तो मैं बात करूं? और क्या, तो मैं तो अच्छा इंसान हूँ ना, मैं तो अच्छे अच्छे बात करता हूँ ना, पॉजिटिव। और मैं क्या हूं? बहुत अच्छा इंसान। वो तो पता था, बट थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। दिस इज, ये डांटूंगा नहीं, दिस इज अ point where I'll actually have a conversation with you. You are bound to fail in this industry if you get into this industry only for money. Believe me, I am such a money minded person. I am going to make crores and crores of revenue out of Paycheck to Profit, and all of you guys are going to watch it. It's just a matter of time. I know that there is tons and tons of money in money mindset and financial literacy coaching, which is precisely why I got into it. It is one of the reasons why I got into it, rather not precisely why. But I'll tell you one thing. I have always understood one thing, which is an absolute fundamental. Money is the last thing that will come to you in this industry if you work correctly. You'll have to pay a lot of money for equipment, for technology, for softwares, for creating content, for ads, for applications, for SaaS services, for email leads, for email marketing processes, for Zoom. You'll have to pay a lot of money. Then you'll have to pay a lot of money to create good content. After having paid a lot of money, you'll have to pay a lot of money for LMS services to upload your programs. Then you'll have to pay a lot of money to make sure that you are keeping your community happy. By the time you will also then start having to pay a lot of money for creating good quality content. You'll have to start getting more people into your team. After everything is settled, at the end of the race, if you have any energy left, that is when you will start making money. So if you think that you're going to become a coach, you're going to make a lot of money right from week one, from webinar one, you are literally living a myth, or unfortunately, you've been sold a golden egg by a coach who was trying to get into your pocket only because he or she knew that money is one factor to get you into this industry. If you're into this industry, it's perfectly all right. You will make a lot of money. There's a lot of scope. The reason why we are creating this podcast is because we know कि यहाँ पे बहुत पैसा है, ठीक है ना? बट पैसा पहले कमाओगे और बाद में वैल्यू दोगे, अगर इस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हो, you're going to fail miserably. Give a lot of value, create an amazing product, create a fabulous community, service that community, and then you see how much money you'll end up making in this industry. There's no upside, there is no ceiling to this, the money that you can make. But if you're over here only to make money, you are in for a very, very, very bad heartbreak. That's all I will tell you. यस। और यहाँ मनीष जी आप जब बात कर रहे थे ना कि बहुत सारा पैसा है, तो मुझे दो गाना का याद आ रहा था। एक तो अक्षय कुमार वाला याद आ रहा था, जो कोई चाय पीने गया था, अरे वो ढाबा पे रोड पे, और वो बोल रहा था मूवी पे कि यार तुम एसी क्यों नहीं लगवाते हो 4-5। वो सिखा रहा था स्कीम, पैसे को कैसे डबल करते, 25 दिन में कैसे 1 करोड़ कमाते, ये सब कुछ सिखा रहे थे। तो एक वो आ रहा था कि पूरा पैसा पैसा बारिश कर रहा है। सेकंड आया था वो वाला, अब बॉबी देओल का एक गाना था, बैंक में सारे पैसे मेरे होंगे, बैंक के सारे लॉकर में पैसे मेरे होंगे, लॉकर क्या पैसा क्या सारे बैंक मेरे होंगे। अच्छा, ये मुझे नहीं हाँ, पता। चोर हाँ, मचाए शोर का ये गाना है। अच्छा। तो अगर मेरे पास वीडियो एडिटर होता है, जो हम लोग पॉडकास्ट एडिट करवाते हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि वीडियो एडिटर यहाँ पे ये डाल दीजिएगा, तो हम लोग रॉ वीडियो डाल रहे हैं, एडिट नहीं कर रहे। तो ऑडियंस अगर आप लोग को पता है तो आप इमेजिन कर लीजिएगा कि वहां पे वो दोनों गाना आ रहा है अपने हिसाब से, करेक्ट। जो आपका फेवरेट है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट डू यू वांट टू से समथिंग ओवर हियर कि सिर्फ पैसों के लिए अगर कोई इस इंडस्ट्री में आ रहा तो डूबने का चांस क्या है, या क्या आपको कोई थॉट्स है इसके बारे में? इसको थोड़ा मसालेदार बनाते हैं। अगर आहा, सिर्फ कोई पैसों के लिए आ रहा है, हाँ जी। और अगर 16 में से बाकी सारा पॉइंट को फिक्स कर लिया, हाँ, खाली ये पॉइंट फिक्स नहीं किया, तो आई थिंक तुम सक्सेसफुल स्टिल हो सकते हो। अच्छा। मैं तो तभी भी नहीं मानता।
कैसे, मतलब हर कुछ कर रहा है, अच्छे से वैल्यू दे रहा है, अच्छे से क्लैरिटी है उसका निश में, मार्केटिंग अच्छा कर रहा है, इम्प्रूव करने को रेडी है, उसका लीड्स वगैरह सब अच्छा जा रहा है, कंसिस्टेंट है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में नहीं बह रहा है, ब्रांडिंग कर रहा है, कंटेंट बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा आदमी नहीं बन गया वापस से, वो उसका माइंड तो निकल ही गया ना पैसों से। मैं बताता हूँ, इंटेंशन से बहुत फर्क पड़ता है। जिस आदमी का इंटेंशन पैसा है ना, वो जब वेबिनार भी स्टार्ट करेगा ना, उसकी नजर रहेगी अच्छा 20 लोग है ना, आज तो मैं 2 सेल करूंगा। उसका ध्यान सिर्फ वो 2 सेल पे होगा, बाकी के 18 लोगों को वैल्यू देने पे नहीं होगा। अब मतलब मैं बिजनेस बंद करा के रखिएगा ना आप, मतलब यहाँ पे भी मैं अब इतना 4 घंटा से ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, तो इधर भी बोल ही देता हूँ कि जब मैं 1-to-1 सेल करता था लोगों को यहाँ पे, VSL फनल चलाते थे एजेंसी के लिए, तो मेरा अच्छा चलता था, क्लोजिंग रेट हाँ अच्छा था, बट अच्छा मतलब 10% था, बहुत अच्छा नहीं था ऑफ कोर्स, बट हाँ 10% था कि वो इट वाज प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे अब दिखने लग गया, अरे कि ये इंसान नहीं बैठा हुआ मेरे सामने, ये बैठा हुआ है मेरा एजेंसी का फी, उसको हम नंबर से लगाते थे, ये इतने रुपए का मुर्गा बैठा हुआ है मेरे सामने, तो नहीं बिकता था। और वो ऐसा लगातार ही हो रहा था, मतलब महीना 2 महीना तक एक सेल नहीं हुआ था मेरा, और क्योंकि 10-15 दिन सेल नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा वो फील करने लग गया कि यार पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, ये इतना एड पे पैसा लगे जा रहा है। एक लीड को लाने का 5-5 हजार रुपये हम पे करते थे VSL फनल के लिए, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेबिनार, आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ, VSML, ब्रिंगिंग 1-to-1 VSL पर्सन, और फिर और हाँ, वो भी और वो इस निश के लिए टिकट, हाई टिकट सेल भी होता है, और सीधा 5,000 का लीड आपको सीधा 30,000 का तो मिनिमम बिजनेस देगा पर मंथ। पर मंथ। तो वो अगर एक साल रहता है मिनिमम, तो वो 3 लाख का बिजनेस हो गया, तो 5 हजार का लीड हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, 50 हजार में एक भी क्लोज हो जाता है, 3 लाख का सेल। तो करेक्ट। बट होता क्या था कि डेली का 5 हजार रुपए का एड चल रहा है, और 15-20 दिन तक बिक नहीं रहा है, तो फिर आदमी को टेंशन होने लग जाता ना, चाहे कितना ही मोटिवेशन दो, कुछ भी दो, टेंशन होने लगता है, अरे 1 लाख रुपए खर्चा हो गया, अभी तक सेल नहीं हुआ। तब और वो डेस्परेशन जो बोलते हैं वो और बढ़ जाता है, अब तो सेल करना ही करना है, और प्रेशर बढ़ जाता है कि अगले मंथ भी ऐड चलाना, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उस केस में फिर और सेल खराब हो गया, फिर ये एक इधर उधर हम भी अपना कोच के पास गए, मेंटर के पास गए, वो मेरा रिकॉर्डिंग चेक किया, बोला अरे तेरे चेहरे पे डेस्परेशन दिख रहा है कि तुम बेचना चाह रहे है जबरदस्ती। बोले कहाँ दिखता है, हमको तो नहीं दिख रहा है कुछ। बोला इसीलिए तो तुम मेरे पास आया है ना। बोला अच्छा ठीक है। तो हम जिद्दी उतने नहीं करते, फिर हम समझाते, हम समझ लेते हैं, हम फिर आर्ग्यू थोड़ा बहुत समझते हैं कि क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ, वो तो तुम फीडबैक करते हो और वो फीडबैक लेके। अच्छा भी है। एज अ मेंटर आई टेल यू, वो अच्छा भी है कि तुम कोई भी बात को सिर्फ मानने के लिए नहीं मानते हो, तुम उसके हाँ क्रक्स पे जाते हो, और फिर अगर तुमको लगता है कि लॉजिक है तो ही मानते हो, विच इज समथिंग दैट आई हाँ अप्रिशिएट एंड आई वुड नॉट वांट यू टू चेंज दैट एवर। यस, नहीं तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनेगा ना कि जबरदस्ती हाँ बोल रहे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, या फिर फालतू में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ये वो हो गया आपका स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज में, कि दूसरा का टिप लेके बाय कर रहा है स्टॉक, करेक्ट। तो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये मेरे साथ होता था, मैं दोस्त पैसा कमा लेता उस स्टॉक पे, बट हम उसको सेल करके बैठ गए 10% का प्रॉफिट पे, अब वो डबल करके बैठा हुआ है अभी। तो बट हाँ, होता है। हाँ, तो कुल मिला के यहीं पे फिर बात ये था, अ, फिर मेंटर मेरे को बताया, तो हम रियलाइज किया, फिर उसको अगले बार से फिक्स किए, तो होने लग आने गया लगा। सेल्स, पहले ही सेल क्लोज्ड, क्योंकि हम उसमें बजट बना लिए थे कि मेरा इस महीने का बजट इतना है, हुआ हुआ क्लोज, नहीं हुआ नहीं हुआ, मेरा बैंक में इतना पैसा है, आई कैन सस्टेन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स। और इतना सारा कॉल्स हो जाएगा तो हो ही नहीं सकता सेल नहीं होगा। करेक्ट। अब बहुत सारा मोटिवेशन मिला था मुझे, बहुत सारा वो सेल्स मेंटर मेरा फिक्स किए थे वो सब बातें, तो फिर हम बोले कि चलो आओ, अब तो हम रिजेक्ट करेंगे, अब हमको लेना ही नहीं एप्लीकेशन, मतलब प्योर एकदम बैठ गए थे कि मुझे 10 में से 1 चाहिए नहीं, 10 में से 9 लोगों को रिजेक्ट करना, वो मेरे लिए हार्ड हो रहा है कि कैसे रिजेक्ट करे। हाँ नहीं नहीं, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट तुम्हारा माइंडसेट अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम आगे जाके बोलोगे, मतलब कन्विंस तो हो रहे हो ऐड चलाना, बट आगे जाके रोओगे कि नहीं ऐड में पैसा लग गया, क्योंकि वो बोलता था कि मेरा हार्ड अर्न मनी है। बोले सभी का हार्ड अर्न मनी होता है, चोर लोग भी चोरी करता है, वो भी तो बेचारा मेहनत करके चोरी करता है, हालांकि प्लीज आप लोग मेरे घर पे मत आइएगा कभी, ठीक है। मिलेगा भी नहीं आप में, ऐसा डिजिटल है, और डिजिटल का भी लॉकर उकर मतलब अलग प्रोसेस है, ठीक है जाने दीजिए, अलग ऑफ टॉपिक है काफी। हाँ तो बट हाँ तो ये पॉइंट से भी मैं रेजोनेट कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो, कि अगर जो आप बोले मतलब मेरे हाँ पास कहीं ना आपके कहीं 2 इफेक्ट सवाल है करता है। अभी। मेरे हाँ पास अभी आपके पास 2 सवाल है। बोलिए। आपके सेल्स कोच का एक्सपीरियंस कितने सालों का था?
एक्सपीरियंस कितने सालों का था वो तो मुझे पता नहीं, बट वो सक्सेसफुल कोच था क्योंकि वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कोच के लिए विनर सेल्स कोच, वो विनर सेल्स पर्सन था। तो आप समझ गए उसका थॉट प्रोसेस कि लोगों को रिजेक्ट करना और डेस्पिरेशन दिख जाएगा और कैसे ये करना है। और मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे 15 पॉइंट भी आप कवर कर लो, लेकिन अगर आपका अभी भी माइंडसेट सिर्फ पैसों का है, आप नहीं सेल कर पाओगे। हाँ और तो आपके लिए। वही ये बात ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बताइए, अग्री किया हम इस पे? क्योंकि और मैं ओपन टू चेंज हूँ, क्योंकि वो भी कोच का एक नेचर होता है। हाँ ऑफ कोर्स, वरना तो हमारा पॉडकास्ट इतना टाइम चलता ही नहीं। और दूसरा हाँ बात, अब आप मुझे वापस बताइए, आप ही के क्वेश्चन को मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ। 15 पॉइंट इंसान चेंज कर ले, लेकिन ये वाला पॉइंट चेंज ना करे, जीतेगा? इसको मैं नहीं आंसर करना प्रेफर करूंगा। ठीक है। आपने क्योंकि ये ना आंसर करके भी आंसर कर लिया। हाँ मतलब मनी माइंडसेट तो होना ही चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स, वो तो मैं खुद बोलता हूँ, बिना बट पैसों के ओनली मनी माइंडसेट नहीं। हाँ, ओनली मनी माइंडसेट इज वेरी डेंजरस। यस, कि पैसा ही कमाना, जो ये मेरे एग्जांपल से भी इनफैक्ट रेजोनेट कर रहा है ना, कि शायद ऊपर कहीं पे हम बोलेंगे, क्योंकि ये इसलिए हम अग्री कर जा रहे हैं इजली। ऊपर कहीं हम बताए थे ना कि वैसा कुछ नहीं बनना है जो कि जॉब चला गया है तो 3 महीना उसको पता है बीच में नोटिस पीरियड है, तो 3 महीना के लिए हम कोचिंग कर लेंगे। तो ये वही हो गया ना, 3 महीना खाली पैसा कमाने के लिए आ रहा है, तो ये तो ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। हाँ, नहीं मतलब इसके लिए वाला याद दिला दूं, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, बाकी के 15 पॉइंट ठीक कर लो तो कौन ये बोला? कोई तो था ऐसे, तुम नहीं, कोई और। पता नहीं, वो गलत बोलता है, वो लोग को जाने दीजिए। हाँ, करना चाहिए मतलब, सक्सेसफुल होने के लिए जितना ज्यादा सक्सेस चाहिए उतना पॉइंट्स इसको अवॉइड करना चाहिए, फिक्स करते रहना चाहिए। of course. Which actually, see, the good point, we were just joking around over here, but the good point that I would want you to understand is every point has a potential to drown your business. Every. So don't take one point lightly that, okay, the rest of the points are in place. Every point, right from the first point, which we've discussed in the earlier episode in part one, too much focus on learning and very little execution, bad at selling, or lack of consistency or lack of action, every point has the potential to drown your business. यस That is और what I want to. यस, और अगर आप लोग को लग रहा है, जैसे कि मुझे लग रहा था कि नहीं 15 पॉइंट तो ठीक है, मतलब चलता है, अगर आप लोग को भी लग रहा है तो आप लोग भी शेयर करिए। हो सकता है मनीष और या मैं, जो भी हम लोग Of रेलेवेंट course. रहेंगे, वी हाँ, विल विल गिव यू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कि अगर आपको सीरियसली लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपको आर्ग्यू करने का मन कर रहा है, तब भी पोस्ट करिए, हम लोग कंस्ट्रक्टिवली आर्ग्यू करेंगे। और अगर लगता है कि हम लोग जीत पाए तो ठीक है, अगर आप जीत पाए तो आप ठीक है, बट वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन। for sure. For sure. हो सकता है हम लोग को भी कुछ पॉइंट नहीं पता, तो विल इम्प्लीमेंट इट। 17th 18th पॉइंट आप लोग डाल सकते हो जो हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम लोग 10 मिनट में जितना टॉप में पॉइंट्स आए डाल दिए। नहीं तो ऐसे डालने के तो फिर इसमें 100 पॉइंट भी डाल देंगे, तो 15 मतलब वापस से हर बार की तरह इस पे एक पॉडकास्ट चालू हो जाएगा पूरा का Correct. पूरा। तो आप लोग को जो जो कुछ कॉमन एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर याद आ रहा है एज ऑडियंस, तो आप लोग कमेंट पे ऐड कर दो कि ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बाकी लोग उस पॉइंट को देखकर वो रेजोनेट करे, और हम लोग पर्सनली उस पर रिप्लाई भी करते हैं कि एक्नॉलेज करेंगे आपका पॉइंट। Absolutely. यस, Last point, Pankaj. तो ये तुम प्रूव जो कर ही दिया ना। जो एपिसोड हम शुरू करने के पहले हमने सोचा था 1 घंटे में पूरा करेंगे, हम्म। वो एपिसोड 2 पार्ट्स में बन चुका है। हाँ, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए होंगे। करेक्ट। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, मतलब लास्ट वाला पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि इंसान को हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं करना चाहिए उधर की, नहीं नहीं मैं तो अड़ियल नहीं होना चाहिए। करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल आप लाइव देख ही चुके होंगे मेरा अभी 2 मिनट पहले, कि हाँ 15 हाँ। पॉइंट वाला हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और हम बहस करने के लिए बोल दिए, बट फिर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मिला तो हम मान लिए कि हाँ करेक्ट। ठीक है, और आपने तो होता बहस है। करने के लिए भी नहीं बोला, यू प्रोबेबली डिड नॉट सी दैट पर्सपेक्टिव द यस मोमेंट आई यस टोल्ड यस, द पर्सपेक्टिव। हाँ काइंड ऑफ, हाँ, कंस्ट्रक्टिव बहस, हाँ क्रिटिक। हाँ। हाँ मतलब मैं उस एंगल से बोल रहा था, सही, मतलब मैं भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा था वहां ऑफ पे, कोर्स। हाँ रैंडम नहीं। तो हाँ हाँ, मेरा वोकेबलरी इशू है, वो बहस नहीं था। हाँ हाँ। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था, बट हाँ मुझे लगा कि नहीं ये सही बात है कि वो इम्पोर्टेंट है, और फिर मुझे खुद का केस याद आ गया कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। हम्म। तो दूसरे एग्जांपल से वही बात है कि इससे कौन रेजोनेट करता है, तो मुझे उस बात को स्ट्राइक किया, हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो हम करेक्ट। अडेप्ट कर लिए ना चेंज के लिए, तो खाली इस पॉइंट के लिए नहीं, हर पॉइंट के लिए जहां आपको लग रहा है चेंज के लिए अडेप्ट होना चाहिए, चेंज करना चाहिए, आप चेंज करिए। चाहे माइंडसेट में हो, चाहे मनी माइंडसेट में हो, चाहे एड माइंडसेट में हो, चाहे
फिर हम फालतू फालतू एग्जांपल लेने लग जाएंगे, बट हाँ, कि कोई भी चीज जहां आपको लग रहा है बिजनेस में हेल्प हो सकता है, चेंज करिए। इसीलिए तो एबी टेस्टिंग के बारे में हम उतना स्ट्रेस कर रहे थे। एबी टेस्टिंग भी तो वही है कि मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि ये ऐड चला दूं कि वो ऐड चला दूं, दोनों चलाओ। तो हम बोलते हैं दोनों चला के देख लो, जो अच्छा चलेगा वो चला लो। हम्म। उसको क्लाइंट को क्यों नाराज करना है? हो सकता है, और बहुत बार हुआ है ऐसा, नहीं कि बहुत बार हम कॉन्फिडेंस से बोले कि चला के दोनों देखिए लेकिन चलेगा यही, तो चल गया उसका वाला, तो अब हम उससे लड़ाई थोड़ी कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि इसीलिए तो हम आपको बोले थे दोनों चलाने। बोला ओ हाँ अच्छा। तो फिर एक्चुअल में वही होता है कि आप, कोई नहीं बोल सकता है। इनफैक्ट आप फेसबुक का खुद का बात करोगे, फेसबुक में जब आप ऐड चलाते हो, फेसबुक को पता है कि पूरा ऑडियंस क्या है, आप ही सिलेक्ट करते हो कि इंडिया में दिखाना है, इस एज ग्रुप को दिखाना है, इस इंटरेस्ट को दिखाना है, इतना बजट है, मेरा लैंडिंग पेज, ये सारे डेटा फेसबुक को दे देते हो। फिर भी आप एक कॉलम देखोगे वहां पे एस्टिमेटेड रीच लिखता है, एस्टिमेटेड लीड्स लिखता है। तो फेसबुक को तो पता है ना कि इस तरह का ऐड पे इतना रिएक्शन आता है, इतना लीड्स आता है, तो वो क्यों नहीं लिख देता कि 800 रुपया खर्चा करोगे तो 10 लीड्स मिलेगा आपको या 0 लीड्स मिलेगा। वो एस्टिमेट करके देता है, क्योंकि उनको सब डेटा पता है, सारा लोगों का बिहेवियर पता है। ऐसा ऐड हो सकता है, सेम ऐड मनीष लॉन्च किए होंगे, उन्हीं का सेम कॉपी करके हम लॉन्च किए, सेम लैंडिंग पे, सेम ऐड, सेम पिक्सल, सेम टाइम पे, हर कुछ सेम, लेकिन फिर भी फेसबुक नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑडियंस किसका शकल देख के क्या रेजोनेट कर रहा है, करेक्ट। किसका शकल, मतलब ऐड का शकल, किसी का भी कुछ भी, इनफैक्ट कुछ भी, शकल से भी कुछ भी। रेजोनेट हो सकता है। हाँ, शक्ल पे रेजोनेट हो सकता है, ब्रांड कलर पे रेजोनेट हो सकता है, फॉन्ट पे कुछ भी। रेजोनेट हो सकता है, कुछ भी। हाँ, या फिर उसका मूड नहीं है, आज हम रजिस्टर ही नहीं कर रहे। फेसबुक को हाँ। कहाँ पता कि आज इन लोग का मूड नहीं था, रजिस्टर नहीं करना। और मूड का एग्जांपल वो हो गया कि उसको पता ही नहीं था कि आज लोकल यहाँ पे बैंगलोर में इस बात के लिए स्ट्राइक चलेगा। हाँ। तो उसको कहाँ पता कि इस बात के लिए आज स्ट्राइक चलने वाला है। तो हजार हजार लाखों करोड़ों वेरिएबल्स होता है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और बाय द वे, ये हम रैंडम एग्जांपल लिए, तो कोई मेरे पे केस मत कर देना इन केस अगर कभी कहीं स्ट्राइक हो कितना जाए। सोचते हो यार, कितना सोचते हो। नहीं, वो आपसे वो सीखे थे, आप नाम नहीं लेते ना किसी का, तो हम सोच रहे थे कि अगर स्ट्राइक का बात कर रहे हो, एक्चुअल में कभी स्ट्राइक हुआ, कुछ लड़ाई उड़ाई हो गया जैसे मूवी में होता है, तो वो हमको नहीं फंसा दे, इसको कैसे पता था? ये तो 1 घंटा पहले ही बात कर रहा था। दिस वाज जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, डिस्क्लेमर। हो गया। परफेक्ट। तो जस्ट इन केस, इफ यू आर एक्स्ट्रा नहीं, नहीं बोलना है, ऑडियंस इतना एंड तक बैठा हुआ है, जस्ट इन केस फॉर वट एवर रीजन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट इज, इट इज you are bound to fail if your resistance to change, adapting to new policies, adapting to new ideas, and if you're resistant to improve. Again, I would like to act like that matchstick in a petrol refinery. Pankaj has himself told me about so many of his cases where he recommends genuine suggestions to people, and people are just not ready to adapt. And I don't understand this why. It's your Yes. business. If by adapting to this one small change, you can decrease your lead cost or you can improve your sales percentage by 5%. Why would you not do that? मैं तो मनीष जी एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे जाते जाते लोग खुश हो जाएंगे। वापस Acha. एक और अपना गड़बड़ी, मतलब मैं सारा Did you गड़बड़ी, understand why did I say one matchstick in a petrol refinery? I knew this is going to हाँ, happen. मैं सारा गड़बड़ी अपने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसको फिक्स भी कर रहा हूँ। Of मैं ये course. नहीं बोल रहा हूँ कि 16 का 16 चीज मेरे में परफेक्ट है या फिर मैं फिक्स कर चुका हूँ, बट मुझे एटलीस्ट रियलाइजेशन है, वो फर्स्ट स्टेप है। Of वो course. रियलाइज हो रहा है तो मैं फिक्स करता हूँ। और जो अभी मैं बता रहा हूँ वो मैं फिक्स कर चुका हूँ। Hmm. मैं अपने एजेंसी में पहले लोगों को सिर्फ फेसबुक एड्स देता था कि फेसबुक एड्स भगवान है, उसके उसी वो चला लो एंड वी आर डन। बट बहुत लोगों का फेसबुक एड से कुछ कुछ कंप्लेन आने लगा, कभी कुछ इशू आ रहा है, कभी ये हो रहा है। फिर मुझे खुद भी डर लगने लगा, अरे मैं तो एजेंसी चला रहा हूँ, मैं खाली एक ही ट्रैफिक सोर्स के बदौलत क्यों अपना बिजनेस चला रहा हूँ? Correct. जैसे ऑर्कुट था पहले बंद हो गया, उसी तरह से मान लेते हैं अगर कभी फेसबुक बाई चांस बंद हो जाता है, मेरे लिए एटलीस्ट बंद हो जाता है कि मेरे को परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर दिया मेरे एजेंसी को, तो मैं तो लड़ने जा नहीं सकता हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता, लड़के भी क्या कर ले। बट वो बैन कर दिया, उसकी मर्जी, उसकी कंपनी। तो मेरा तो बिजनेस बंद हो गया ना, क्योंकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी ही उसी के अराउंड चल रहा है कि कोचेस को फेसबुक एड से रिजल्ट लाके देना। फिर Correct. मैं रिजिड था 1 1.5 साल तक कि नहीं वो बहुत इजी है, यूट्यूब एड में टाइम लगता है, सीखना है, लर्निंग कर्व है, मुझे सीखना पड़ेगा, मेरी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। फिर यूट्यूब एड के लिए लोग बोलते थे कॉस्ट ज्यादा आता है, फिर बोलते कि मुझे पता था फेसबुक एड में डे 1 से रिजल्ट आता है, यूट्यूब एड में कभी कभी टाइम लगता है, 15 20 दिन ऑप्टिमाइज होने में लग जाता है, कभी जल्दी होता कभी लेट से होता है, बट ये सब मेरे मन में चलता था। बट फिर मुझे लगा नहीं कि अब
ये हो रहा है दिक्कत लोगों को। एक्चुअल में लाइव दिक्कत होना चालू हो गया था कि लोगों को कभी अकाउंट बैन हो रहा था, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा था, कभी कॉस्ट बढ़ रहा था। और बैन होता था, हम लोग नया अकाउंट बना लिए, फिक्स कर लिए, ठीक है। बट उस ड्यूरेशन में सब कुछ बंद हो जाता था, और बंद हो जाता था तो शुरू से जीरो से चालू करना पड़ता था। इमेजिन करिए आपका 10 लाख पर मंथ का बिजनेस चल रहा है वेबिनार का, एज ए इंडिविजुअल कोच, मस्त आप चला रहे हो, और आपका अंडर में 4-5 टीम मेंबर है, सबका सैलरी देना, सब कुछ मस्त चल रहा है। अचानक से एक दिन बंद हो जाता है फेसबुक एड्स, आपका अकाउंट बंद हो जाता है। तो आपके पास तो कुछ था ही नहीं ना अगले दिन, सब क्या कर रहे हो, क्योंकि आप तो ऑर्गेनिक भी नहीं किए थे, जो कि हम नहीं करते थे उस समय ऑर्गेनिक मेरे क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि हम करेक्ट, उनको वो भी नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था, वो अपना ऐड चला रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, खुश थे, पैसा आ रहा था। तो जब तक नीड नहीं बन रहा था, क्यों करेंगे? करेक्ट। फिर यही चीज फिर मुझे लगा कि नहीं, अब दिक्कत हो रहा है सारे क्लाइंट्स को, और कॉमन चीज हो रहा था, ये पैटर्न रिपीट हो रहा था बार 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 बार। तो एक पॉइंट आया तो फाइनली थोड़ा लेट से एक्शन लिए, बट एक्शन लिया। फिर हम अपने पोर्टफोलियो में डाले यूट्यूब एड्स, फिर पोर्टफोलियो में डाले गूगल एड्स। और मनीष जी, अभी रिसेंटली हम 1 महीना पहले 2-3 क्लाइंट के लिए लिंक्डइन एड्स भी लिंक्डइन। चालू कर चुके हैं। तो लिंक्डइन से मुझे लगता था नहीं, लिंक्डइन तो बहुत महंगा है, 5 गुना कॉस्ट आता है, 5 गुना कॉस्ट आता है, वहां कंपनी वाले देते हैं। सब बात सही है, गलत कुछ बात नहीं है। लेकिन एक एडिशनल पोर्टफोलियो में डाल के रख लो, क्योंकि अभी जो हम एक कोच के लिए चला रहे हैं, उसका कन्वर्जन लिंक्डइन से भी आ रहा है। एड कॉस्ट 5 गुना 6 गुना महंगा पड़ रहा है, लीड कॉस्ट 200%। लेकिन उसी हिसाब से उनको कन्वर्जन क्वालिटी भी मिल रहा है, और ये बात सबको पता है। कोई भी लिंक्डइन जो एजेंसी नहीं चलाता है ना, वो यही 2 रीजन से चलाता है। बहुत महंगा है। हाँ, और लेकिन उनको पता रहता है कि कन्वर्जन होता है। ये भी पता रहता है कि कन्वर्जन हो जाता है। अगर फेसबुक से 100 लोग आ रहे हैं, और मान लेते हैं 5 लोग बाय कर रहा है वेबिनार में, तो लिंक्डइन से अगर 5 गुना महंगा है, तो वहां से 25 लोग बाय कर लेगा 100 में से। कन्वर्जन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप प्रॉपर टारगेटिंग करते हो। दोनों बात सही है। बट होता है कि नहीं चला रहा तो नहीं चला रहा, या फिर जो फेसबुक सीख गया, मेरे केस में ये था, सीख गए तो चल रहा कंफर्ट है ना। जोन। वो कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वही तो पॉइंट है। इंसान जब तक कंफर्ट जोन में बैठा हाँ, हुआ रहेगा एडेप्ट, हाँ, अडेप्ट तो। करना। और मैं आपको पर्सनली अपने हिसाब से एक बात बोलूंगा, ट्विटर पे भी फोकस करो। इंडिया का ट्विटर का ऑडियंस बहुत अच्छा है। ट्विटर मुझे करना है, मतलब मैं खुद भी अभी उस पर एक्टिव नहीं हूँ, मुझे यूज करना भी नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं करता हूँ यूज। कोई तो बात नहीं, धीरे उसके धीरे। लिए तो कभी हम बैठ जाते हैं, बट ट्विटर पे भी फोकस करो। एंड इवन कोचेस एंड डिजिटल बिजनेस ओनर्स यूज ट्विटर। as much as I've understood, Twitter is also very good, and I'm going to be running my ads on Twitter very soon. So I'll यस, obviously share मैं my कम हाँ, perspective with you. हाँ, मैंने इस चीज में कंप्लीटली एग्री कर रहा है आपसे। क्योंकि ये वही बात हो गया विजन का। मैं चालू कर रहा था, मैं कोचेस को चलाता था फेसबुक एड से। बट जहां मैं काम करता था एज एन एम्प्लॉय 5 साल 6 साल पहले, वो ट्विटर पे और यूट्यूब पे नहीं चलाते थे। वो सेंटेंस को फिक्स करते हैं वापस से, थोड़ा वो बना रहे थे हम हाइप। वो सिर्फ ट्विटर और यूट्यूब पे नहीं चलाते थे, Hmm. वो ऐड चलाते थे गूगल एड्स पे, नहीं शुरू से फेसबुक पे चलाते थे, इंस्टाग्राम पे चलाते थे, फिर चलाते थे यूट्यूब पे चलाते थे, फिर गूगल सर्च ऐड चलाते, गूगल शॉपिंग ऐड चलाते थे, टिकटॉक भैया पे ऐड चलाते थे, फिर आपका लिंक्डइन चलाते थे, कोरा पे करते थे, ऑर्गेनिक करते थे, ऐड नहीं चलाते थे। बट कोरा पे वो थे प्रेजेंस उनका। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते थे, मेरे से एफिलिएट मार्केटिंग भी करवाते थे। मतलब कुछ कुछ कंपनीज होती थी, उनसे टाइप करते थे, वो करती थी हमारे बेसिस पे, बिहाफ पे ईमेल मार्केटिंग करती थी। सेकेंड टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग हो गया कि वो आपस में 10 कंपनी से टाइप कर रखी है, वो लोग उस 10 कंपनी पे ऐड चलाती है। ऑफलाइन ऐड चलाते थे, न्यूज़पेपर पे ऐड चलाते थे। इन सब के अलावा कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हॉटस्टार, सावन, गाना.com, ये लोग को भी नहीं छोड़े थे। वहां से भी हमारा ब्रांडिंग हो रहा था। तो वहां का फाउंडर स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड वगैरह वाले थे, और यहाँ पे हम थे, मतलब उतना नया नया बिजनेस चालू किए थे। तो Correct. वो कुछ सीख कर और कुछ एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे वहां से, कुछ फॉलो कर रहे थे वो। तो कहने का मतलब है कि लर्निंग बिल्कुल सही बात है वहां से, कि एक्चुअल में हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके बैठे हुए। वहां की टीम जो थी डिजिटल मार्केटिंग की, 10 12 15, कितना काउंट किया आप अभी तक? 11 तो मैंने ऐसे सोर्सेस गिन लिए थे। हाँ, तो मतलब 11 है, और मान लीजिए और ऑफलाइन चैनल्स वगैरह भी, तो 10+ से वो चला रहे थे। और अगर हम अपना मतलब वो बिजनेस वो अपना डिपेंड करवा रहे थे इतने चीजों पे। क्योंकि करेक्ट। उनका भी एक इशू आया था एक बार, कि एक बार 3 महीना के लिए उनका बिजनेस ठप हो गया था, इसी के कारण से। समझ गए ना, इसी के कारण से वो अकाउंट बैन हो गया।
जीरो से चालू करना पड़ा। हालांकि 3 महीना में हम लोग को लर्निंग्स बहुत ज्यादा मिल चुका था कि क्या वर्क करता है, क्या इमेजेस है, क्या एड कॉपी वगैरह। तो फटाक से हम लोग वापस से करोड़ों में स्केल कर लिए थे। उनका करोड़ों का सेल्स होता था पर मंथ। तो करेक्ट। फटाक से स्केल हो गया था। बट अगर वो अब जो स्टेज पे है, इतना सारा प्लेटफॉर्म्स में है, इतना कुछ कर रहे हैं, 2 प्लेटफॉर्म 4 प्लेटफॉर्म भी बैन कर दे, क्या ही फर्क पड़ रहा है उनको? ये होता शक्ल है। के तो दाग से डर नहीं लगता। हाँ, तो वो होता है। वरना उस समय तो फेसबुक बैन हुआ था, तो फिर वो तो हालत खराब हो गया था हमारा पूरा कंपनी का, कि पूरा मेहनत गया था ना, 1.5 साल ऑफ 2 साल से हम जीरो से लेके। मेरा हार्ड वर्क था पर्सनली वहां पे। मुझे लग रहा था, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो मैं ही हैंडल कर रहा था, मुझे लग रहा था अरे जीरो से कर रहे, धीरे 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 क्या चल रहा है, ये बैन हो गया। So this is literally, I think, an episode which we can talk for another 4 hours. हम्म। और वापस we can start right from point number 1 and we'll come back to point number 16 and we'll still keep talking. हाँ, नए नए एग्जांपल्स के साथ। Yes. But the purpose of this podcast, as I said earlier, is not to scare you, but to show you and help you save your mistakes and save your business. Pankaj, do you want to say something or do you want me to just close the conversation for today? ठीक है, आप सेव योर बिजनेस बोले, फिर हम बोलेंगे सेव योर टाइम, सेव योर मनी, सेव योर एनर्जी एंड सेव आवर टाइम। और बाकी Yes. सारा चीजें की सेम ही चीज मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि कोई मेंटर मुझे बोले थे रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। तो यही चीज है कि हम लोग, जो मनीष जी बोले सेम चीज को मैं हिंदी में बोलूंगा, कि हम लोग डरा नहीं रहे, हम लोग आपके भलाई के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग भी फेल होते थे, तो हम लोग भी यही सब पॉडकास्ट वगैरह नहीं था हमारे पास, बट हम लोग जनरल मेंटर से बात करते थे 1 to 1। आप लकी हो जो आपको इतना सारा कुछ रॉ फिल्टर होके मिल रहा है, हर कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ, प्रॉपर 4 4 एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि खाली हम लोग बोल रहे कंसिस्टेंट नहीं होना है, मतलब ये मोटिवेशन नहीं चल रहा है। आपके कोचिंग इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज करके अपने एक्सपीरियंस लाके बता रहे हैं, Correct. मोटिवेशन नहीं है। तो हर चीज के लिए वही है, बैड प्रोडक्ट तो बनाने के लिए तो कोई कंटेंट क्रिएटर होगा जो ये पूरे एपिसोड को 16 पॉइंट को 10 मिनट का ही वीडियो बना के डाल देगा अपने यूट्यूब चैनल पे। हम डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, हम भी डालेंगे। बट ठीक है, जिसको छोटा में देखना है तो वो देख ले। हमको लग रहा है मेरे बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बट हाँ, वो एक हो गया कि 10 मिनट में कवर करना, ताकि करेक्ट। एक पर्सपेक्टिव में मतलब बस पर्सपेक्टिव मिले मिल कि जाए। करेक्ट, वो भी मजाक अच्छा कर है। रहा हूँ। हाँ। हाँ बट यहाँ पे हम लोग इतना सारे एग्जांपल्स लेके क्लियर कर रहे हैं कि कोई बोल ही नहीं सकता कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। नहीं नहीं, कोचिंग इंडस्ट्री में मेरे को क्या काम। हम लोग आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए बात कर रहे हैं। एंड मनीष जी, यहाँ पे फिर से हम आपको थैंक यू करना चाहेंगे कि ये पॉडकास्ट चालू किया हम लोग फाइनली। ये पॉडकास्ट मतलब पूरा कोच आई नीड हेल्प वाला, मुझे अब करेक्ट। स्कोप दिख रहा है। हर बार और कॉन्फिडेंस आते जाता है हर एपिसोड के बस बाद, कि वसूल। हाँ, कि जब वो चालू होगा, मतलब पहले मुझे लगता था अरे फेसबुक ऐड के बारे में तो पूरा दुनिया ही बात करता है, आप क्या बोलते हो कि पॉडकास्ट नहीं है। बोले ठीक है चलो करते हैं, मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे को तो कंटेंट मिल रहा है। बट लग रहा है कि नहीं, अब लग रहा है कि नहीं, इसके बारे में तो कौन ही क्या ही बात कर लिया, कर भी लिया होगा 10 टॉपिक तो 4 घंटा कौन बैठ के बात करेगा, करेगा भी तो मेरे जैसे कौन बात करेगा, मतलब अब समझ रहे हो? अब समझ में आ रहा है तुम्हें जो मैंने इस 20 हफ्ते पहले तुम्हें बताया था। शर्म लाज बैच के बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि नहीं हमको फर्क नहीं पड़ रहा, हम फेल हुए थे, क्या कर लोगे, हुए थे तो हुए थे। बेटा। एंड हाँ, एक चीज और है, आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक द कोचेस जो आप लोग बैठ के यहाँ तक देख रहे हो। मनीष जी का बात का बुरा लगा तो इग्नोर करिए, उनको डिसलाइक करके चले जाइएए, बट कोच के उनको चैनल पे डिसलाइक जाके करके चले उन, जाइए। हाँ, उनके उनके चैनल पे जाके डिसलाइक दबा दीजिएगा, मिस्टर इमोजिकल वगैरह नीचे मिलेगा। बट कोच आई नीड हेल्प को लाइक करिए, क्योंकि आप वहां के लिए बैठे हुए थे। सो थैंक यू। एंड मनीष जी, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे सकते हो। थैंक यू। हाँ, आपने मेरे चैनल को डिसलाइक करवाया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अगर 20th एपिसोड नहीं आया तो समझ लीजिएगा क्यों नहीं आ रहा है। बट ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। यस, आई विल say sorry if I have offended anybody in any way, but by now if you've understood me and my personality, you understand I don't mean any negativity. I only want to do my bit to help you. And if anybody has gotten filtered out, they did not stay till the end to listen to Pankaj to hear dislike my video, so that's perfectly okay. Having said that, this has been an absolute pleasure. See you in the next episode. Take care, keep smiling. See you in the next episode. थैंक Thank you यू, so बाय much. बाय।